welcome you all in this webinar on very crucial topic of revised guidance note on tax audit with special emphasis on clause 44, which is very important nowadays for finalizing the tax audits. Now I request our worthy President Advocate Vinod Mahajanji to please formally welcome our guest of speaker and the audience. Vinodji. सर माइक ऑन करो विनोद जी, माइक ऑफ है सर आपका। विनोद जी आपका स्पीकर म्यूट हुआ है। गौरव जी कर दें। आ रही? हाँ आ गई सर आ गई। I on behalf of Income Tax Practitioners Association Amritsar welcome Shri CA Sanjay Agarwal ji for today's virtual meeting. I am thankful to Shri CA Sanjay Agarwal ji for sparing his valuable time from his busy schedule for today's webinar. I am also thankful to Voice of CA to hold today's meeting jointly with ITPA Amritsar. I welcome all the participants. Now I request Secretary Shri CA Gaurav Agarwal ji to proceed with the today's meeting. If any member has any query, he can WhatsApp the same to Mr. CA Gaurav Agarwal at his phone number 98143 10561. I repeat 98143 10561. Thank you. Over to Gaurav ji. Thank you, President sir. Now I would like to request our Vice President CA Gaurav Gupta ji, who is also the past chairman of the Amritsar branch of CA Association, to please address the audience. Thank you so much, Gaurav sir. I would like to welcome and thanks all the participants for sparing their valuable time and joining us on this joint event by Voice of CA and Income Tax Practitioner Association Amritsar. Sanjay sir, I would like to elaborate about ITPA Amritsar in 2 minutes. ITPA Amritsar, sir, is a legendary income tax bar which has a presence since 1943-44, rather pre-independence era, and it's a joint body of chartered accountants, income tax practitioners, advocates, and the tax practitioners. Sir, the bar is working for the betterment of the profession for the last several years and taking up the various matters with the respective authorities for the betterment of profession and the ultimate clients and tax professionals also, sir. Sir, the bar is taking various initiatives for launching various activities for the knowledge brushing of members and taking up various matters to respective authorities for the betterment of professionals and various practitioners at large. Now I would request Gaurav ji to please take the charge and kindly acknowledge the presence of Anil Jain, Vice President, the past Chairman NIRC, and Sanjay sir also. Over to you, Gaurav sir. Thank you so much. Sir, unmute kar lo, sir. Sir, unmute kar lo. Sorry. Thank you, Gaurav ji. Thank you for your words of wisdom. I hereby, on the behalf of Income Tax Practitioner Association, acknowledge the presence of Shri Anil Jain ji, the founder member, as told by Gaurav ji, the founder member of Voice of CA and past chairman of the NIRC. I can see the past chairman of Amritsar branch also, CA Jatinder Bansal ji, and the president of GST Association, CA Advocate Ranjit Sharma ji. I can only see a very few faces on the screen. So if I miss anyone, please excuse me, sir. And moving forward, the clause 44, the tax audit, the guidance note on tax audit on which we are going to deliberate, and the clause 44 on GST breakup of expenditure. This has created a new cumbersome job for all the chartered accountants. There are a lot of issues involved in it,
which needs clarification. The Institute of Chartered Accountants of India has come up with a guidance note on 20th of August on this, on overall the tax audit, and particularly they have released guidance on clause 44 also. Still, the practical task of finalizing clause 44 and other issues are persisting with the CA forms. So not taking much of your time, I would like to continue and ask Sanjay ji to please start with his deliberation. Before that, since we have tax advocates, tax professionals and chartered accountants in this panel, all the chartered accountants are aware of Mr. Sanjay Agarwal, who is our Central Council member of the Institute of Chartered Accountants of India. But for the knowledge of our tax advocates and income tax practitioners, I am deliberating with you a small biodata of our guest speaker of the evening. Sanjay Agarwal ji is BCom Honors, FCA and LLB, and in practice since 1986. He had been the Central Council members earlier also for 3 terms, and now he had been elected as the Central Council member for the 4th term for the Institute of Chartered Accountants of India. He is the chairman of various committees. Presently, he is the chairman of Public Relations Committee and International Taxation Committee of the ICAI and Deputy Convener of Legal Directorate. He also remained the chairman of the Northern India Regional Council for the year 2004-2005. Sanjay ji is a very great speaker on the direct taxes, and we have been learning from him since long on the matter of direct taxes. Now I would request Sanjay ji to please start with the deliberations on tax audit. Thank you, Gaurav Agarwal ji, for the nice introduction. President of the Bar, Advocate Vinod Mahajan ji, my local guardian in the Amritsar, CA Gaurav Gupta ji, Secretary Sahab Gaurav Agarwal ji, and Joint Secretary Advocate Raman Sharma ji. The all-weather friend Anil Jain, past chairman NRC, the past chairman of the Amritsar branch Jatinder Vansal ji, past offices bearer of the Amritsar branch, and Ashwini Jindal also joined from the train. He is presently in the Shatabdi coming back to Jalandhar. He has joined from the train itself. बुक्स And, हैवी लेके आ गए हैं, हैवी बुक्स होंगी सर, बंदा चाहिए था इनको साथ में. हाँ जी. And all the dearest friends, those who have joined from various parts of the cities, and I will say that I'm thankful to each one of you. Though in the series, this is the, I think I'm addressing the 9th seminar, and few of the issues which has come in various webinar or seminar when we have addressed at that time, some of the issues which are likely to also being added after the deliberation from the Income Tax Practitioner Association Amritsar deliberation, I will add in my PPT where the guidance have not been given by the issued, because when we put to the public domain this guidance note for the public comments, at that time we have received very less comments, because the members and other fraternities thought it that as it was deferred in the last year, this will also be deferred in this year. So there are 2 clauses which are required to be reported in all audit which are required to be done after 31st March 2022. So one clause is 30C. However, I have been made a special emphasis that 30C is not applicable in most of the part of the
Amritsar area. But however, I would like to give you a quick review of 30C also in 5 minutes, because ultimately 30C is also required to be filled up. So I will take you to my presentation. After 30C 44, I will deal with the practical questions, whatever I have dealt with yesterday. And then in your Q&A, please post all your question, or the President Bar has requested that same should be sent to the Gaurav Gupta ji. So he will take all the questions. Let me assure you, everyone, each one of you, that I'm going to taking the all questions, whatever is possible. Wherever it is not possible to answer, then I'll come back. And I have already told the Direct Tax Committee Chairman that we need to issue the questionnaire also in regard to tax audit after the outreach programs are complete by 6th or 7th of September. Because there are questions which are very vital as regarding the reporting, as regarding the disclaimer, as regarding the qualification, as regarding the observation in respect of clause 30C and 44 both. So I will take you to my presentation, and I hope mostly the people are from the north, so I'll be using Hindi, English both. If you have any problem, please let me know. So friends, the clause 30C and 44, as I said, that 25th March 2021, there was a circular issued date number 5/2021, which said that date of applicability is deferred till 31st March 22. Lot of myth was there. It was reported in some of the social media that this is not applicable in this year. But let me tell you, we have confirmed from the board and they have clarified it to us that no, these are only till the reports which are being signed till 31st March 2022. So any report which is going to be finalized after 31st March 2022 is required to be having these two clauses in their reports. And as such, that is why the utility has incorporated both these clauses. Now, let me tell you just quickly that 30C is in respect of impermissible avoidance arrangement. Now, these are required to be reported. If the answer is no, there is no problem. But if there is answer is yes, then we have to report the nature of impermissible avoidance arrangement and then the total amount of benefit in tax which will be there to all the parties of the arrangement. Now, in this regard, let me tell you that there is in 11 these rules wherein no, it's moving. PPT move हो रही है गौरव जी? नहीं सर, नहीं हो रही सर. ठीक है, बिल्कुल still है. एक मिनट. नेक्स्ट पेज नहीं आया, फर्स्ट पेज ही है. अच्छा, एक सेकंड. पीपीटी मोड पे कर लें सर. आ गया अब? हाँ जी, हाँ जी. Yes, आगे. So, what we need to see this, that we have to give the tax effect to the all the parties of the arrangement. सर म्यूट हो गया जी. What effect is there in respect of various parties? If I am not having the taxation of the other party, how can I say that the effect on them in terms of the amount of tax benefit? But at the same time, the threshold limit for this is 3 crore. ये टैक्स बेनिफिट 3 करोड़ रुपए से अगर ऊपर का आ रहा है तो वो इम्परमिसिबल रिपोर्ट होनी है,
अगर उससे नीचे अगर इम्परमिसिबल है भी तो आपको रिपोर्ट नहीं करनी। वो ट्रांजेक्शन, वो अरेंजमेंट, वो एग्रीमेंट जो कि गार जिसको इन शॉर्ट कहते हैं, अगर उसका 3 करोड़ से ऊपर टैक्स इंपैक्ट आ रहा है तो उसको रिपोर्ट करना है। तो इसलिए दी लार्जर पार्ट इट इज नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि 30% जो है टैक्स है, बट लेट मी टेल यू दिस इज अ मिथ, बिकॉज इफ इट इज अनडिस्क्लोज इनकम then tax is more than 75%. And as such, if your P&L is more than 10 crore or more than 3 crore, if 30% is there, then 10 crore. Otherwise, if your P&L is more than 3 crore, then in that case, this GAR can happen. This GAR is also possible where the bogus billing in the GST is also there. And you come to know beforehand in the audit that there is a bogus billing, and because of that the tax impact is more than 3 crore rupees. इंस्टीट्यूट ने हमारे यहाँ पे एक चीज और कही है कि आप यहाँ पे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में लें कि क्या 2017 के बाद उनके ऊपर कोई गार के अंदर किसी तरीके की कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है क्या। अगर कोई हुई है तो उसका कौन कौन सी पार्टियां हैं, कौन सा वो अरेंजमेंट है जो गार के अंदर आपके ऊपर कोई इनिशिएट हुई है या कल्मिनेट हुई है। तो गार के अंदर एक प्रोसीजर है कि पहले एओ उस ट्रांजैक्शंस को देखता है, उसके बाद वो सीआईटी को भेजता है। सीआईटी उन ट्रांजैक्शंस को अगर समझता है कि भाई ये ठीक कह रहा है एओ, तो एसएससी को नोटिस देता है। एसएससी नोटिस के बाद उसका रिप्लाई लेता है। रिप्लाई लेने के बाद वो एक पैनल को रेफर करता है, जो कि पैनल डिसाइड करता है कि ये इम्परमिसिबल है या नहीं है। एज सच 3 लेवल्स आर देयर। अगर किसी भी लेवल पे उनका केस पास में अगर है और वो कंटिन्यूड है तो अपने को ऑडिटर्स को यहाँ पे रिपोर्ट करना है। अदरवाइज अगर वो डिस्क्लेमर देना चाहें तो ये दे सकते हैं कि सारी पार्टियां ऑफ द अरेंजमेंट क्योंकि असेस नहीं हो रही हैं उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, उसको मालूम नहीं है कि उनके ऊपर टैक्स इम्पैक्ट क्या है, इसलिए वो इम्पॉसिबल है उसके लिए ये डिस्क्लोजर देना। तो ये जो है इन नटशेल जो है हमारी जो है 30C है, जो की क्लॉज जो है आपकी आती है। इसको मैं और ज्यादा नहीं ले रहा हूं और मैं जो है वो चाहूंगा एक बार मेरे को दोबारा लाना। अब चल रही है? हाँ जी चल रही सर। चलिए, तो ये जो है गार में छोटा सा मैंने अपनी चीज को कराया। आप लोगों को कोई क्वेश्चन होंगे देन आई विल टेक इट। सो नाउ लेट मी कम टू द मेन पॉइंट is about the clause 44. Now friends, let me tell you what is clause 44 and whether it is applicable to entities. Entities can be proprietor, entities cannot be individuals, so there has to be some entity. Now the heading of the GAR, 44 is breakup of total expenditure of entities registered or not registered under GST. So I have to report both registered and not registered also. Here somebody raised a question, if suppose the assessee to whom I am doing the audit is an assessee who is not at all registered under the GST regime. For example, let me presume that advocates. Now if the advocate are required to have their audit done as it is done in the case of 50 lakh and above, or if you are getting it done because you are not reporting 50% of the tax under section 44 ADA, then in that case you need to see to it that this 44 is applicable. Now what we have to report? So first of all, we have to report that
the total amount of expenditure incurred during the year. Now, the question will come, how I have to determine how much amount I have to disclose here. This is in respect of entities. This is in respect of entities. Please be careful, because what I am going to tell you from the guidance note, that in this total expenditure, what we have to include and what not we have to. When this guidance note was released, at that time in the utility, only the gross amount was required to be reported. But when I have seen the utility 2 days back, what I have found कि ये जो अपनी है, ये ड्रॉप डाउन सारी चीजें दे रही है, नहीं चल रही. I've been told that this PPT is not working. Let me unshare it. दोबारा करता हूँ मैं इसको. वेलकम मैन साहब. गौरव जी देखो अब आई, हाँ जी सर. क्या आ रहा है उस पे? सर फर्स्ट स्क्रीन आ रही क्लॉज 44 की. ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर से Yes. स्टार्ट हो रही ना? यस यस. अच्छा एक मिनट, अब इसको आगे भी चला के देखते ना. चल रही है. चल रही है. हाँ जी हाँ जी. चलिए. So the total amount of expenditure means revenue as well as capital. But hold on, the issue says in this amount, if there are payments which are related to the entities which are given in Schedule 3 of the GST Act. Schedule 3 of the GST Act talks about payment of salaries and wages in relation to immovable property. Now, the thing is this, if we do not have to include in the total of these amounts, then in drop down, we have to not include the revenue on account of salary, etc. If it is not included here, then in the next column, that is 3 number, it will also not come. Because the issue says either it is not relating to registered entities, क्योंकि salaries में हो सकता है कुछ केसेस के अंदर वो लोग इंडिविजुअल केसेस में अपनी रेंटल में या किसी और चीज में वो रजिस्टर्ड हो, लेकिन इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे गाइडेंस दी है कि आप उसको टोटल अमाउंट में ना लें. और दूसरी उन्होंने चीज कही कि आपको डेप्रिसिएशन नहीं लेना है. तीसरी उन्होंने एग्जांपल दिया बैड डेट्स आपको यहां नहीं लेने. अब यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हमारे पास आए डेलिब्रेशन के दौरान जिसको हमने कंसिडर किया. जैसे हमसे किसी ने पूछा कि बताइए ओपनिंग स्टॉक का मैं कैसे बताऊंगा कि वो रजिस्टर्ड डीलर है या नहीं है, कौन सा बचा है. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लिया, मैंने जो माल लिया वो रजिस्टर्ड से भी लिया, अनरजिस्टर्ड से भी लिया, और इसलिए जो है वो हम उसको कहाँ डालें. तो सर हमने इसको डेलिब्रेशन करी. डेलिब्रेशन करने के बाद ये पता लगा कि जो है वो आपको ओपनिंग स्टॉक यहाँ नहीं लेना है, सिर्फ परचेजेस लेना. मुझसे एक कोई और क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप ये बताएं कि मैं रिवर्स चार्ज के अंदर जो मटेरियल परचेज कर रहा हूं, इंपोर्ट कर रहा हूं, वो मुझे कहाँ दिखानी है. ये आपको टोटल में लेनी है, और क्योंकि रिवर्स चार्ज में दे रहे हैं, आपकी वो एंटिटीज जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि वो इंडिया में नहीं है, तो वो आपको लास्ट कॉलम में लेनी. तीसरे, बैंकिंग में इंटरेस्ट जो है एग्जम्प्ट है. आप लोग एडवोकेट हैं, बहुत सारे लोग डील कर रहे हैं, और जो है वो एक बार गौरव जी फिर देखना चल रही कि नहीं. जी जी चल रही है सर. एब्सोल्युटली फाइन. पता नहीं कंट्रोल रूम बार बार कह रहे हैं नहीं चल रही. जी जी क्लियर नजर आ रही सर. क्लियर आ रही है इनकी. ये देखो, एक मिनट अंदर आके बताइए आप क्या बात.
वो कंट्रोल रूम कह रहा है फर्स्ट पेज पे अटके हुए हो, क्या चक्कर है, पीपीटी चला क्यों नहीं रहे? अभी बारी नहीं आई PPT क्योंकि पीपीटी में आगे बताने की बारी अभी आई नहीं। चलिए वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि संजय जी एक ही स्लाइड पे क्यों बोली चले जा रहे हैं। सो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि अगर बैंकिंग इंटरेस्ट, में यहाँ थोड़ा सा इंटरेक्टिव करने की कोशिश करूंगा। बैंक जो है अगर मेरे पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो इंटरेस्ट जो है क्या जीएसटी में एग्जेम्प्ट है? अगर आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे अगर एग्जेम्प्ट है तो कहाँ एग्जेम्प्ट है ये बताएं। सर वो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में एग्जाम्प्ट है, इट इज नॉट, मतलब शेड्यूल 3 में नहीं। शेड्यूल 3 की नहीं है, ठीक है जी। हाँ शेड्यूल 3 में नहीं है वो। हाँ अब देखिए, क्योंकि पहले हमें ये अमाउंट जो देना था वो टोटल कंसोलिडेट देना था, अब ड्रॉप डाउन में आप आइटम वाइज देते हैं। अब आपको बैंक का अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो बैंक चार्जेस भी हो सकते हैं, आपकी बैंक गारंटी कमीशन भी हो सकता है जिसपे जीएसटी चार्ज है, तो एंटिटी तो रजिस्टर्ड है। लेकिन कुछ सर्विसेज उसकी ऐसी हैं जिन पे जीएसटी लग रहा है और कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिस पे जीएसटी नहीं लग रहा। तो वो जो जिस पे जीएसटी नहीं लग रहा है वो कॉलम नंबर 2 के अंदर भी आएंगी और कॉलम नंबर 3 में भी आएंगी, क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड हैं, वो अनरजिस्टर्ड नहीं है बैंक। और कुछ जो है सेम उनके बैंक चार्जेस, गारंटी कमीशन एटसेट्रा, चेक बुक इशू चार्जेस वगैरह जिसके ऊपर वो जो हैं आप पे जीएसटी ले रहे हैं वो रिलेटिंग टू अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज में आएगा। इसी तरह मेरे से एक और क्वेश्चन पूछा गया कि मैं शेयर परचेज सेल का धंधा करता हूं, बिजनेस कर रहा हूं, प्लीज टेल मी व्हाट आई रिफ्लेक्ट वेयर। Now, when I purchase the share, similarly, I wanted to know whether it is an exempted item, purchase of shares or not. According to me, it is an exempted item. So, it is to be included. But when I pay the brokerage, so I pay the GST on it. But when I pay the STT, though I show separately in my record, but on STT, there is no GST applicable, but it is in respect of the entities registered in GST. So I need to see whether it is a exempt or not. Now I will take you to my next PPT. आपके ऊपर है, आ गई है सर नया? जी सर। नेक्स्ट, ठीक है। तो ये मैं आपको अब ये बताना चाहूंगा कि जीएसटी में वी नीड टू सी दैट व्हाट आर एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट वी हैव टू रीड फ्रॉम 247 then 278 because 247 talks about 3 types of the services and supply. First, what the 247 said, exempt supply means supply of goods or services or both which attracts what? 1 nil rate of duty. तो जिनके ऊपर 0 rate है, they are neither exempt but they are presently in 0 tax regime, or which may be wholly exempt from tax. The third is which includes non-taxable supply. Now the thing is this, I need to go through with the 1 nil rate of duties, then wholly exempt, what is the meaning of wholly exempt, and the last one is what are the meaning of non-taxable supply. So non-taxable supply have also been defined in section 2 subsection 78 of CGST Act. It says non-taxable supply means a supply of goods or services or both which is not leviable to tax. So this is non-taxable supply. So these are to be reported in column 2. Now let me come to 9.1. 9.1 is also an exempt. Liquor, अमृतसर के लिए तो स्पेशली है, आपने लिकर अगर डेबिट कर रखी है तो वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है. 9.2 we have to read.
because 9(2) says petrol, crude, high speed diesel, oil, spirit, नेचुरल गैस, ये अगर आपने कहीं डेबिट कर रही है तो ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, क्योंकि इनके ऊपर दूसरा टैक्स लग रहा है, जैसे कि लीकर के ऊपर दूसरा टैक्स लग रहा है ह्यूमन कंजम्पशन वाली पे, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन वाली पे टैक्स लगता है। फिर इशूट ने जो मैंने आपको पहले बताया दैट शेड्यूल 3 is the thing for which the issued has taken a stand, that schedule 3 items are not required to be reported either in column number 1 or anywhere. So in the observation, we should say this, that we have not included the manpower supply. So what they have said in the issued guidance note, I try to read. Schedule 3 lists out the activities or transaction which are treated neither as a supply of good nor a supply of service, and thus expenditure in respect of such activity need not to be reported under this clause in any of the column from 3 to 7. 3 to 7 का मतलब जो मैंने यहाँ पे कॉलम दे रखे थे, 3 to 7 का मतलब ये 3 to 7 में कहीं नहीं आना है, रजिस्टर्ड में भी नहीं आना है, अनरजिस्टर्ड में भी नहीं आना। So part 1 of schedule 3 covered services by employee to the employer in the course or in relation to employment, and thus remuneration to employees need not be reported here. अब मुझे यहाँ किसी ने पूछा सर आपने डेप्रिसिएशन बता दिया, बैड डेट्स बता दिए, आपने सैलरी बता दिया, आप ये बताइए कि आप पार्टनरशिप रेम्यूनरेशन भी नहीं लेना है? नहीं लेना है साहब, बिजनेस इनकम में वैसे असेस होता है, लेकिन उसको एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर किसी तरीके का जीएसटी नहीं लगता है। तो ये जो है हमारा टोटल जो है आपका रिलेशन था इनसे। अब तीसरा जो है पॉइंट जो रिपोर्ट करना है, क्वेश्चन आंसर, देन आई विल आफ्टर deliberation of all these clauses, I will take all the question answer. Please do not worry. Those who are giving in Q&A, I will give the answer by reading out that question. And then if you are not satisfied, I will request the control room to unmute one by one. And those who are giving anything in the chat box, please avoid. Please type your query in Q&A. Otherwise, I will request for their hands to be raised so that we can unmute them. Now, levy of relating to composition scheme. The issued said section 10 of CGST Act says that a composition can be judged from 4 parameters. 1, a composition dealer cannot charge a GST in the invoice. So if you are looking to the invoices, the composition dealer cannot charge GST in that particular invoice. So if the GST is not charged, it means he may be a composition dealer. A composition dealer cannot make a interstate supply. So हरियाणा से पंजाब, दिल्ली से हरियाणा, दिल्ली से पंजाब अगर कोई सप्लाई दे रहा है, बिल के ऊपर वो कह रहा है कि दिल्ली में वो रजिस्टर्ड है, जीएसटीएन नंबर नहीं मेंशन कर रहा है, लेकिन वो सप्लाई कर रहा है, तो वो कंपोजिशन डीलर नहीं हो सकता। तीसरा उन्होंने कहा है कि वो इनवॉइस के अंदर टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर सकता। सो इफ इन द इनवॉइस जीएसटी इज सेपरेटली चार्ज, देन इट कैन नॉट बी ए composition. And last, the composition dealer has to mention in their invoice as composition taxable person, not eligible to collect tax on supply. So we have to give the total of all these expenses in this format. क्योंकि ड्रॉप डाउन में आपके पास now you have to give separately, so we have to work out in this. कोई बात नहीं, आप चिंता ना करिए, मैं डिस्क्लेमर जहां जहां भी पॉसिबल होगा वहां आपको बताऊं। इशूड ने एक कंसिस्टेंट स्टैंड लेने के लिए बोला है कि आप जो है इस क्लॉज 44 में डिस्क्लेमर ना दें, बिकॉज रेवेन्यू ने हमारे ऊपर एक फेथ दिया है एंड वी हैव टू डिस्चार्ज दिस फेथ। आप
डिस्क्लेमर अगर देना भी है तो किसी स्पेसिफिक कॉलम की दे सकते हैं जहां पे आप किसी जज नहीं कर सकते, या आपको लगता है कि उसमें कुछ पूरी आपके जो है वो पैरामीटर्स नहीं हो रहे हैं, तो आपने क्या टेस्ट चेक किया है, क्लाइंट ने आपको क्या चीज दी है, आपने कितने ऑडिट के ऊपर वो किए हैं, उसके बेसिस पे आप अपने ऑब्जर्वेशन में दे सकते। नाउ ineligible input credit which are blocked under 75 or in case of purchases from person, in case of purchases from person registered under composition levy, it is normal practice for small and medium taxpayer not to mention GST of the said supplies in their accounting software. तो ये डिफिकल्टी बताई उन्होंने कि अगर आपका कोई ऐसा है जो कि ब्लॉक क्रेडिट है तो वो मेंशन नहीं करता है अपने इनवॉइसेस पे जीएसटी नंबर, लेकिन रजिस्टर्ड होता है, तो इस केस के अंदर आप डिस्क्लेमर दे सकते हैं। दूसरी चीज, इंस्टीट्यूट ने ये भी कहा कि आप यहाँ भी डिस्क्लेमर दे सकते हैं, जहां पे वो कहता है कि रिपोर्टिंग सच इट इज नॉट पॉसिबल or quite possible that some of be reported in category expenditure related to entity not registered under GST. तो आप जो है वहां पे भी एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे सकते हैं जब आप अमाउंट दे रहे हैं, so that tomorrow you are not in trouble for giving the misreporting. तो ये जो है आपका है। अब कॉलम नंबर 5 में कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने एक कंसिस्टेंट स्टैंड लिया कि ये किस लिए चाहिए था, why this column was required. In fact, revenue wanted to know that how many payments you are making after 180 days. But while drafting this clause, it is quite possible that that aspect was not possible. So they wanted to know how much GST they have to, the assessee has to withdraw or not, or to reverse, because he has not made the payment for more than 180 days. However, while drafting this, it is said expenditure related to other registered entities. Sorry. It's the next mail. Sorry. Total payment to registered entity. Now, in this case, issue says what is you have to do. The language used is here total payment to registered entity. A question may arise whether the total payment is to the registered entities to be reported, or the total expenditure as booked in the books of accounts. And as such, they said a harmonized interpretation shall be that column number 6, where you have to report total payment in registered entity, is the total of 3, 4 and 5. So आपको यहाँ पे अर्थमेटिकली टैली करना है, ना कि बैंक से चेक करना है कि कितनी पेमेंट उन पार्टियों को हुई जिनका आपने पहले कॉलम में दिया है, सेकंड में दिया है, थर्ड में दिया है, फोर्थ में दिया है, फिफ्थ में दिया है। इसलिए the thing is this, the institute has taken a stand that value of expenditure booked as per books of account shall be reported here, and it should be the payment made to the exempted entities, payment made to the amount debited to the exempted, amount debited to composition, amount debited to registered entity should be totaled and should be given in this column. And the last one is related to not registered. तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों के सवाल के जवाब देने की कोशिश करी। अब मैं आपके Q&L में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो 11 हैं, एक बार उनको लूंगा, और फिर जो है अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं उसको कंट्रोल रूम को कहूंगा कि उसको अनम्यूट करें। अभी मुझे स्क्रीन पे सिर्फ आपके क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। सर ये वाली स्क्रीन, ये 7th वाला, ये वाली स्क्रीन कर लें सर, इसमें इंपोर्ट और आरसीएम का है। हाँ जी बोलिए। मैं ये वाली सर 4 पॉइंट। हाँ जी सर, मैं ये वैसे पहले अपने उसमें बता चुका हूँ। इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज जीएसटी आर टू बी इंक्लूडेड इन लास्ट, वो पहले और लास्ट में आएगा, क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं होते इंडिया में। अगर रजिस्टर्ड हो तो जीएसटी लग जाएगा, रिवर्स चार्ज में दे रहे हैं।
आरसीएम वालों को भी आपने कहाँ पे दिखाना है, इन केस ऑफ परचेजेज ऑन विच आरसीएम इज एप्लीकेबल। कोई ऐसी जो जीएसटी ट्रांसपोर्ट वगैरह के हैं तो टोटल में देना है और अनरजिस्टर्ड में देना है। अगर वो आपका ट्रांसपोर्टर जीएसटी नंबर उसके पास है तो आप आरसीएम में नहीं देंगे, तो आपको वो सेकंड कॉलम में जो है वो नहीं, मतलब सॉरी मेरा थर्ड और लिस्ट का जो है सेकंड नंबर कॉलम में आएगा, और अगर वो आरसीएम में दे रहे हो तो वो लास्ट कॉलम में। सर एक इसमें ना आजकल नया इशू सर क्रिएट हो गया हाँ, सुप्रीम कोर्ट की हाँ, जजमेंट के बाद सर, ओशन क्या? फ्रेट पे रिवर्स चार्ज। हाँ तो वो सर 31 मार्च 22 तक तो रूलिंग नहीं थी क्या? ओशन फ्रेट पे सर। हाँ बिल्कुल मैं समझ आरसीएम। गया, जी आरसीएम नहीं था जी। तो आरसीएम आपका था है। सर, 31 मार्च 22 तक था, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो अब 30 अगर 31 मार्च गौरव 22 तक गौरव भी कवर है उसमें या नहीं है मुझे नहीं मालूम, जीएसटी वाला गौरव कोई एक्सपर्ट उस बताए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। गौरव जी उसमें जी ऐसा जी है कि वो सारे मैटर्स जो हैं अभी सब्जुडाइज्ड है, उसमें अभी भी स्टैंड जो है वो क्लियर हुआ है। डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से डिमांड रेज की हुई है, बट सिंस जो अब सुप्रीम कोर्ट का आया है कि वो सारे कैंसिल किए जाएं डिमांड, तो वो मैटर ऑलरेडी सब्जुडाइज्ड है। उसमें किसी में अगर किसी ने पे कर दिया है तो वो डिक्लेयर करेगा, नहीं किया है तो फिर मेरे हिसाब से उसके अंदर वो मैटर आएगा ही नहीं, नहीं क्योंकि महाजन उसने अपनी साहब, बुक्स के अंदर प्रोविजन ही नहीं महाजन डाली साहब होगी ना। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अगर आप रीड करें और वो ये कहता है कि 31 मार्च 22 तक आपको आरसीएम नहीं लगता था, आपने अगर दे भी दिया है तो मेरा एक छोटा सा सजेशन ये है, जो ये ओशन फ्रेट की बात कर रहे हैं गौरव जी, उसको अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ऑब्जर्वेशन में कह सकते हैं कि उसको इसने क्वांटिफाई करेंगे, आरसीएम दे दिया है लेकिन हम इसको यहां नहीं इंक्लूड कर, रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, ठीक है जी जी। और बोलिए जी, और कोई तो नहीं तो क्वेश्चन आंसर लूं मैं, और कोई बात हो तो गौरव जी हाँ जी सर। क्वेश्चन आंसर शुरू करूं, जी जी सर। फिर बाकी चीजें 2 4 5 और पॉइंट हैं, इंस्टीट्यूट का 1 2 जगह चेंजेस है, फिर सर आपने मुझे ये सर बोला मेरी है। रिक्वेस्ट थी कि क्लॉज 44 वाले क्वेश्चन सर पहले लेना, बीच में सर आपको ये क्लॉज ऑप्शन। 44 वाले ही लूंगा, जी मैं क्लॉज 44 वाले ही लूंगा। ऑप्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है या वो कोई अलग और से एक्सप्लेन। क्लॉज से हैं उनको बाद में लेते हैं, हाँ जी मैं उनको संजय वो जी, सर। हाँ जी। सर मेरे वो प्रेसिडेंट सर ने अनाउंस किया था व्हाट्सएप पे डालने के लिए, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया हुआ है मुझे व्हाट्सएप पे, वो आप पढ़ लें सर पहले। वो आप सबसे वो पहले पढ़िए। करते हैं। हाँ हाँ ये जी जी बिल्कुल करिए। सीए गुरनूर कौर जी का है। उन्होंने पूछा हुआ है, हाउ डू वी रिपोर्ट इन क्लॉज 44 रिबेट एंड डिस्काउंट इंटरेस्ट टू पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट टू अनसिक्योर्ड लोन्स। देखिए इंटरेस्ट वाला मैंने पॉइंट बता दिया है, क्योंकि बैंक में पार्टनर्स को और जो जो है आपका अनसिक्योर्ड लोन है ये एग्जम्प्टेड है। ओके जी। और अगर आपने पार्टनर के केस में लिया है, क्योंकि बैंक के केस में मैंने बताया अनसिक्योर्ड के केस में ये एग्जम्प्टेड है और उनको रजिस्टर्ड होना भी नहीं पड़ता है। इंडिविजुअल को अगर है, अगर आपको कंपनी ने दिया है तो कहीं हो सकता है आपको रजिस्टर करना पड़े, तो आपको देखना है कि पार्टी रजिस्टर्ड है या नहीं है। आपको अगर इंडिविजुअल है तो वो अनरजिस्टर्ड में लास्ट में जाएगा, टोटल में आपको लेना है। ठीक है। और जो पार्टनर्स हैं, क्योंकि पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर कहीं रजिस्टर्ड है और डिस्क्लोजर दे रहे हैं कि मैं जीएसटी रजिस्टर्ड हूं, तो फिर उनका एग्जम्प्टेड में आएगा। बैंक का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि बैंक का आपको देना है, बिकॉज बैंक रजिस्टर्ड है ही है, बैंक अनरजिस्टर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है ही। अब कोई ऐसा बैंक हो तो मैं कह नहीं सकता जो 20 लाख से भी कम का हो, पता नहीं सरकार उसको कैसे मान्यता देगी, नहीं तो वो मेरे को लाइसेंस कोई नहीं बैंक मिला ऐसा नजर नहीं आया। इसमें सर एक रिबेट एंड डिस्काउंट भी है ना इसका? रिबेट एंड डिस्काउंट अगर आपका परचेज से रिलेटेड नहीं है, पोस्ट फैक्टो है, और आपको उस पे ऊपर आरसीएम रिवर्स भी करना है, मतलब सॉरी जीएसटी रिवर्स भी करना है, ओके। अगर वो है कहीं तो आपको क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर वो एग्जम्प्टेड है, मुझे नहीं पता, जो जीएसटी के एक्सपर्ट है वो बताएंगे कि जो रिबेट आप दिखाते हैं
उसके ऊपर आपने, क्योंकि परचेजेस में ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा होगा जीएसटी, वो आपका रजिस्टर्ड में कॉलम में जाएगा। रिबेट में मुझे कोई गाइड करे कि रिबेट के अंदर जीएसटी के अंदर क्या ट्रीटमेंट होती है तो मैं बता पाऊं। जीएसटी में क्या ट्रीटमेंट होती है रिबेट की? रिबेट में सर वो इसमें क्लैरिफिकेशंस हैं, नोटिफिकेशन क्या? है डिफरेंट क्या? मोस्ट ऑफ द मतलब एम्फेसिस इज ऑन दिस एरिया की रिबेट एंड डिस्काउंट नॉन जीएसटी में जाता है, तो बट कुछ पर्टिकुलर टाइप के रिबेट्स हैं जो हमने जिसपे गवर्नमेंट ने उसको क्लासिफाई किया हुआ है जिसपे जीएसटी हम चार्ज करते हैं। सर जो चार्ज करते हैं वो तो वहां चले जाएंगे ठीक है, रजिस्टर्ड में। अब जिस पे आप जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट है, वो नोटिफिकेशन देख के वो आपको उस कॉलम में डालने। अगर आपने रिबेट ऐसे लोगों को दे रखी है जो कि अनरजिस्टर्ड थे, तो वो रजिस्टर्ड में नहीं, अनरजिस्टर्ड में जाए। So you have to you have to see each party. सर जो एक क्वेश्चन मेरा, एक फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट जो रहता है वो किस साइड में जाएगा फिर? सर देखिए, फॉरेन एक्सचेंज पे किसी तरीके का कोई जीएसटी नहीं लगता है, और आपका वो डिफरेंस इन बुक्स होता है जो आप आउटफ्लो करते हैं और जो करते हैं। तो मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन में इसमें मुझे अभी तक जो है कोई पूरी एप्लीकेशन ऑफ नहीं, ये डिस्कशन का है, जो आप रूलिंग करेंगे सब लोग मिलके वो होगा। मेरे हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज एक तरीके से बुक एंट्री है, और वो ना तो रजिस्टर्ड है ना अनरजिस्टर्ड है, वो टोटल में नहीं आनी चाहिए। डिस्क्लेमर देके आप टोटल में वहां दिखे कि ये हमने इंक्लूड नहीं किया है। और सर जो रिबेट एंड डिस्काउंट इंपोर्ट वाले केस में कोई होगा तो देन इट विल बी अनरजिस्टर्ड में जाएगा फिर वो? हाँ जी, बिल्कुल अनरजिस्टर्ड है सर। सर। इसी में नेचर पे मैंने रिबेट के लिए बोला, यू हैव टू सी द नेचर ऑफ ईच एंड एवरी आइटम। ओके सर। एक जो इंटरेस्ट आपने बोला इंडिविजुअल के लिए, अब उस इंडिविजुअल के केस में हमारे को तो पता ही नहीं रहता कि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो ना ही को बताता है, तो उस केस में तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। अगर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में वो ये कहता है कि उसको पॉसिबल नहीं है, तो आप उतने एक्सटेंड का डिस्क्लेमर दे दें और उसको लास्ट वाले कॉलम में डाल दें। देखिए मैं बताता हूं लास्ट वाला कॉलम गवर्नमेंट क्यों चाहती है, बिकॉज they wanted to know how much amount people are still in percentage and in quantum they are claiming from unregistered people. That is why they wanted to know this. सर इसमें इंटरेस्ट वाले पोर्शन से तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन जो है उनका इंटरेस्ट पोर्शन इतना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये तो एक फिगर जो है वो मेरे हिसाब से गलत नहीं जाएगी वहां पे। देखो सर तो बात ये है, चाह रही है आप जो है ना, अगर आप कोई चीज नहीं रिपोर्ट करना चाहते हो तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर आपको कोई चीज नहीं लेनी है तो आपको अपनी प्रॉपर डिस्क्लोजर देनी है कि आप क्यों नहीं ले रहे। वो शेड्यूल 3 के आइटम नहीं है। गाइडेंस नोट कहता है सिर्फ शेड्यूल 3 को मैं माइनस कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन को कर रहा हूं, बैड डेट्स को कर रहा हूं। आप अपनी मर्जी से कोई चीज करेंगे, कल को आप शेल्टर नहीं पा पाओ। ठीक है वंशा साहब? राइट सर। चलिए सर, अब क्वेश्चन ले लूं। जी आयुषी जैन जी पूछ रही हैं, प्लीज शेयर व्हाट वी नीड टू रिपोर्ट इन पेमेंट। ये मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। If exempt supplies are taken from unregistered party, should it include in the total amount column and registered column? We can skip it. सिर्फ शेड्यूल 3 के आइटम को नहीं है। अगर आप कोई परचेजेस कर रही हैं या कोई आप एक्सपेंडिचर कर रही हैं, चाय का खर्चा है जो अनरजिस्टर्ड वाले से है, या आपने परचेजेस जो है वो ऐसी परचेज कर ली जो कि किसी डीलर पे रजिस्टर्ड नहीं है, तो पहले और लास्ट कॉलम में दोनों में आना है। यू कैन नॉट स्किप। ठीक है, चलिए निशांत गर्ग साहब, हाउ टू कंप्यूट टर्नओवर ऑप्शन ट्रेडिंग में इसको अभी लेता हूं, बाद में इसको पेंडिंग कर देते हैं। गौरव जी, सत्तर प्रकाश जी प्लीज एक्सप्लेन ऑडिट एप्लीकेटिव 5, इसको भी बाद में लेते हैं। ये नोट करते जाना गौरव जी, छूटना नहीं चाहिए। हाँ जी। रुचि आंचल जी पूछ रही हैं, कॉलम 2 विल बी टोटल एक्सपेंडिचर एज पर एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन सैलरी एंड बैड डेट्स। यस, पर मैं आपको ये बता रहा हूं
कॉलम 2 के अंदर ड्रॉप डाउन आ गया है, आप यूटिलिटी को देख लें, उसके अंदर आप अब इंडिविजुअल भी दे सकते हैं। तो आपको पहले मैं ये कह रहा था, जो पहली मेरी डेलिब्रेशन थी उसमें मैंने ये कहा था आप अपने वर्किंग नोट रखिए या ऑब्जर्वेशन में पूरी वर्किंग कैलकुलेशन डाल दीजिए। अब आपको डालने की वहां इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ड्रॉप डाउन में n नंबर ऑफ आइटम्स डाल सकते हैं। जी, आयुषी जैन फिच पूछ रही हैं, इफ एग्जाम सप्लाईज आर टेकन फ्रॉम अनरजिस्टर्ड शुड इट बी इंक्लूडेड? ये तो मैं ऑलरेडी आंसर दे चुका हूं। चलिए, और नेक्स्ट प्रवीण जैन, व्हाट इफ इज नॉट मेंटेन एक्सपेंस जीएसटी नॉन जीएसटी? तो मेंटेन नहीं कर रहा है तो आपको इंफॉर्मेशन लेनी है। अगर नहीं दे रहे हैं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि आपने ऑडिट प्रॉपर नहीं करी है। आप उसको डिस्क्लेमर देके कह सकते हैं कि मुझे प्रोवाइड नहीं करी। कल को एसएससी का केस लगेगा या उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई होगी, फिर एसएससी आपको चिल्ला चिल्ली करेगा, तो एसएससी को पहले ही कह दो। नाउ लेट मी टेल यू, पीपल आस्क मी डिफरेंट क्वेश्चन कि सर पैसे नहीं देगा। अरे सर, इसका सोल्यूशन थोड़ी है, आपको बना के लाओ, नहीं तो मैं आदमी देता हूँ। गौरव जी के आदमी को मैं कहता हूँ कि भाई ये पार्ट टाइम आदमी है, वो ले लो, मेरे आदमी गौरव जी को दे दूंगा। फीस तो लेनी पड़ेगी ना, ऐसे तो नहीं होगा काम। ऐसी चीजें मत कहो यार। चलिए, ओनली फॉर मेजर एक्सपेंस नहीं किया जा सकता परवीन जैन साहब, आपको टोटल के बारे में देना पड़ेगा। अदरवाइज आप अपनी लिखें कि आपने मेजर चीजों के लिए दिया है, बाकी के लिए क्लाइंट ने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी। फिर ट्रू एंड करेक्ट कैसे करोगे? लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली दैट टैक्स ऑडिट इज ए 100% compliance. It is not in fair, true and fair. It is a assurance, 100% assurance. टेस्ट चेक अगर आप कर रहे हैं तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन में दिखाना है, क्वालिफिकेशन में बताना है कि आपने टेस्ट चेक किए हैं या आपने 100% चेकिंग नहीं करी है। निशान कर साहब पूछ रहे हैं, ओनली डेरिवेटिव वालों को बाद में जवाब दूंगा। गौरव जी, और कौन सा क्वेश्चन रह गया? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस टू बी रिपोर्टेड इन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे जीएसटी नहीं लगता है, नॉन सप्लाई, नॉन रजिस्टर्ड। हाँ जी। और चलिए, ये आंसर हो गया। व्हाट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स? ये मैंने बता दिया है। एक सर, जो मशीनरी रिपेयर वगैरह में लेबर वगैरह को पेमेंट करते हैं, देखिए, अगर आप लेबर पे पेमेंट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से लेबर पे, जॉब वर्क पे जीएसटी लगता है, वो जॉब वर्क नहीं अनरजिस्टर्ड सर, होंगे। कोई नहीं सर, जॉब वर्क नहीं कह रहा। कोई मशीनरी खराब हो गई, कोई बंदा आया मैकेनिकल, उसको पता है कि 500 देना है, जैसे जस्ट इलेक्ट्रिसिटी वाले रिपेयर वाले आते हैं। मेरे हिसाब से ये आपके शेड्यूल 3 में कवर होंगे, ये वर्कर की डेफिनेशन में आते हैं। वर्कर, राइट। बाकी अगर वो वर्कर में नहीं है, कैजुअल वर्कर है या फुल टाइम सर्वर है, उसके ऊपर पीएफ लगेगा नहीं लगेगा, ये बात के क्वेश्चन है। हाँ, ये एक अभिषेक भाई पूछ रहे हैं, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस। अभिषेक भाई, ये मेरे से बहुत लोग क्वेश्चन पूछ चुके हैं। मैं पहले ही ये बता रहा हूं कि प्रोविजन में अगर सर्टेन नहीं है कौन सी पार्टी का है, तो आपका वो प्रोविजन अलाउएबल ही नहीं है। खाली उस केस में ये प्रॉब्लम आएगी जिस केस के अंदर लोग परसेंटेज कंप्लीशन मेथड लगाते हैं। तो प्लीज ये नहीं कहें कि आपको कैटेगरी नहीं पता है, क्योंकि प्रोविजन जो है आपके P&L में अलाउएबल ही नहीं है। असर्टेन लायबिलिटी अलाउएबल है खाली। तो आपको अगर और कोई शक है तो इनको थोड़ी देर में अनम्यूट कर लेंगे। गौरव जी, याद रखना अभी जी सर। सर, आयुषी मैडम का फिर क्वेश्चन आया है। अरे मैडम जी, हमने वहां स्टैंड लिया है क्योंकि हम ये समझते थे, दैट इशू ने स्टैंड लिया है कि ये जो है इनफैक्ट 6 नंबर कॉलम को जो इनको रिलेट करना चाहिए वो 180 डेज कॉलम है। इट्स ए स्टैंड टेकन बाय द योर इंस्टीट्यूट एंड यू नीड टू अबाइड बाय इट। चलिए, गीतेश कंबोज जी। एक्चुअली जो पेमेंट वाली बात आ रही है ना, हाँ संजय सर। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। संजय जी,
महाजन मैंने साहब कहा बोलो ना। ये जो पेमेंट वाली बात आ रही है ना, वो बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो क्लॉज होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी कि पेमेंट आउट ऑफ दोज मेड नॉट मेड विद इन 180 डेज। यस, उन्होंने जो टोटल पेमेंट की बात की है उस केस में तो हमें टोटली देना पड़ेगा, अगली बार ठीक हो क्योंकि जाएगा अदरवाइज सर, तो कोई चिंता ना पेमेंट करो। अगर सपोज एक्सपेंस एक्सपेंस मार्च में हुआ है तो वो तो अभी 180 दिन पूरे ही नहीं हुए। यस, तो इसलिए हमने स्टैंड लिया है वहां पे इंस्टीट्यूट ने कि आप इसको एक रिपोर्टिंग अर्थमेटिकली कॉलम ले लें। बहुत ज्यादा इस पे वी मस्ट नॉट से एनीथिंग बिकॉज दिस क्लॉज 44 इज गोइंग टू बी रिवैम्प्ड नेक्स्ट ईयर, आई एम टेलिंग यू इन एडवांस। ये ऑलरेडी जो है गीतेश जी, आप वही बता रहे हैं जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। व्हाट शुड आई डू विद दिस, गीतेश कंबोज जी? सर Answer कोई live. रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं है, इट शुड नॉट बी रिकंसाइल्ड विद एनीवन। Anonymous attendee, how to report expenses relate to block credit? देखिए, ब्लॉक क्रेडिट से आपने जीएसटी तो दिया ही हुआ है ना, ब्लॉक क्रेडिट तो आपका है ना कि सामने वाले का है? क्या होता है भाई गौरव सर जी? वी हैव टू रिपोर्ट द पेमेंट मेड टू एंटिटीज ओनली। अगर वो पेमेंट ऑलरेडी किया हुआ है तो इट शुड बी रिपोर्टेड। नो नो, ही इज आस्किंग इन दी सेकंड और थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम, दैट इज रजिस्टर्ड एंटिटीज में आएगा, अनरजिस्टर्ड में आएगा या एग्जेम्प्टेड में आएगा? ये मेरे हिसाब से रजिस्टर्ड है, ब्लॉक क्रेडिट से हमें कोई लेना देना नहीं। रजिस्टर्ड में ही आएगा। हाँ, क्योंकि वो जीएसटी नंबर तो है ना, उसका ब्लॉक कर रखा है उन्होंने क्रेडिट, वो बात अलग है। ये अदर रजिस्टर्ड में ही आएगा सर, क्योंकि ब्लॉक तो ऑफिसर ने ड्यू टू सम इशू किया उसका, अदरवाइज तो एक्सपेंस हुआ ही है जी। सर प्लीज क्लैरिफाई वेदर शेड्यूल 3 एंड डेप्रिसिएशन वैल्यू रिपोर्टेड इन कॉलम 2 एंड अंडर टोटल, ये बता दिया सर, मैंने आंसर कर दिया। नो नीड। मेरे बात सुनने के बाद सर क्वेश्चन डालो, पहले ही डाल दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। Accrued but not paid, ये भी बता देखिए जो डेबिट हुए गए हैं आपको उनको ही लेना है, आपने पे नहीं करे हैं तो आपको कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप जो है उनको रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड में डालिए, एग्जाम्प्ट तो एग्जाम्प्ट में डालिए, और अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड। ये सर फिर वही बता रहा हूं, एक्रूड बट नॉट ड्यू में आपके पास सामने आइडेंटिफाइड होगी पार्टी। यू कांट से आपने रेंट अगर देना है, आपको इंश्योरेंस देनी है, एक्रूड क्या चीज होती है? मुझे एग्जांपल बताइए इनको, आप बताइए, इनको अनम्यूट करेंगे थोड़ी देर में। प्लीज डू नॉट आस्क मी एनी थ्योरेटिकल क्वेश्चन। सर वेयर टू शो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हाँ ये मैं बता चुका हूँ, परचेजेस लेनी है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कहीं नहीं लेना है। इंस्टीट्यूट ने नहीं बोला है, ये हमने जो है वो फाइनल करा है, ये अपने क्वेश्चन आंसर में विल ट्राई टू डू इट। पेट्रोल पंप नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, नहीं ऐसा नहीं है। पेट्रोल पंप ज्यादातर जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्ट एग्जम्प्ट होती है, तो वो आपको एग्जम्प्टेड में डालनी है, क्योंकि वो कई चीजें ऐसी बेचते हैं जिन पे जीएसटी लगता है, ऑयल पे लगता है। ओपनिंग स्टॉक में बता चुका हूं। सर वेदर रिवाइज्ड वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल, ये भी आउट ऑफ। चलो इसको एक बार आंसर दे देते हैं ताकि खत्म हो। रिवाइज वर्टिकल फॉर्मेट अंडर टैक्स ऑडिट भी अवेलेबल, मैं समझा नहीं, रिवाइज वर्टिकल। सर जो सजेस्टिव इंस्टीट्यूट ने जो फाइनेंशियल फॉर्मेट सर अलाउ किए हैं वर्टिकल के, रिकमेंडेटरी जो है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। वो रिकमेंडेटरी भी हैं और इसके लिए प्रमोद जैन साहब बताएंगे, मुझे नहीं मालूम। स्टिल नॉट क्लियर अबाउट रिबेट एंड डिस्काउंट, रिबेट एंड डिस्काउंट में पूरी साहब मैं फिर आपको बता रहा हूं, आपको देखना पड़ेगा पार्टी वाइज जिसको दे रहे हैं, और अगर वो पार्टीज आपकी अनरजिस्टर्ड हैं तो अनरजिस्टर्ड में जाएगा, रजिस्टर्ड हैं तो वो रजिस्टर्ड में है, एग्जम्प्टेड नहीं है। आपका वो एक्सपेंडिचर हो सकता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा है, लेकिन वो पार्टी तो जीएसटी की है, तो आपको कौन सा नोटिफिकेशन है, अगर बहुत ज्यादा आपको ऑब्जर्वेशन में देना है तो नोटिफिकेशन नंबर डाल के उसके आगे आप लिख सकते हैं, इसकी वर्किंग आप अपनी ऑब्जर्वेशन में डाल सकते हैं। बाकी फोन कर लीजिएगा पुरी साहब। रवि रंजन जी, if we purchase exempted item from unregistered, then it column should be reported yes to and last.
आपको टोटल में लेना है और लास्ट में लेना है। ये 2 बार पूछ चुके हैं, इनको जवाब दे दिया है। पवन जी, सर हाउ टू डिस्क्लोज फिगर ऑफ ब्रांच स्टॉक? कोई जरूरत नहीं है, आप ऑब्जर्वेशन में दे दें कि इतना जो है स्टॉक है क्लोजिंग ट्रांसफर हुआ है, ये इंटर ब्रांच है। जीएसटी से अगर कोशिश करेंगे तो आपका टैली हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी पे मेरे हिसाब से जीएसटी एग्जेम्प्ट है, वो शेड्यूल 3 में नहीं है। शेड्यूल 3 के लिए इंस्टीट्यूट ने स्टैंड लिया है, बाकी चीजों के लिए आपको एग्जेम्प्टेड वाले में देना है। चलिए, व्हाट अबाउट ईएसआई, पीएफ, बोनस एंड लीव विद वेजेस? देखिए, इसके अंदर क्योंकि ये सैलरी के साथ क्लब होंगे स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, तो मेरी ओपिनियन में इनको भी आपको इंक्लूड नहीं करना है। हाँ, यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन है कि कभी एम्प्लॉय, मैंने आपको अभी बताया कि हो सकता है रेंटल में रजिस्टर्ड हो, तो छोटा सा ऑब्जर्वेशन में कहीं डालना हो तो आप डाल सकते हैं कि वी हैव नॉट असर्टेन दी रजिस्ट्रेबल ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयज इन देयर पर्सनल हैंड, वेदर एक्सपेंडिचर इज टू बी शोन। देखिए, ये आपका अकाउंटिंग सिस्टम बताता है, अगर आप जीएसटी की अकाउंटिंग इंक्लूसिव कर रहे हैं, मतलब सेल्स के अंदर भी जीएसटी इंक्लूड है और आपके परचेजेस में भी है, और आप जो है सेपरेट लेजर मेंटेन कर रहे हैं इनपुट आउटपुट के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप, अगर आप इंक्लूसिव मेथड यूज कर रहे हैं तो उसको इंक्लूड करके लिखिए, अगर एक्सक्लूसिव मेथड कर रहे हैं तो उसको एक्सक्लूड करके लिखिए। 99% एक्सक्लूसिव मेथड लेते हैं, कोई भी जीएसटी अपने उसमें नहीं लेता है, एडजस्टमेंट एंट्री। इज क्लॉज एप्लीकेबल टू डॉक्टर? यस, चाहे आप एग्जेम्प्टेड हैं, हॉस्पिटल तो बेचारे परेशान हो रहे हैं इस चीज के पीछे कि हमें सब देना पड़ेगा। सम कैपिटल एक्सपेंडिचर इलस्ट्रेट, जैसे आपने एसेट परचेज कर ली, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कार खरीद ली, बिल्डिंग में लगा दिया पैसा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यस, सैलरी इज नॉट टू बी शोन इन 3 to 7। गुरनूर कौर, गुरनूर कौर जी, आपने वहां भी पूछा है, यहाँ भी पूछ रहे हो, दोनों जगह कर पूछ रहे हो। चलिए और बताइए, कोमल चौधरी जी पूछ रहे हैं हाउ टू रिपोर्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू ब्लॉक क्रेडिट। ये आंसर मैं दे चुका हूँ, वो रजिस्टर्ड है, रिपीटेड है। ये ईएसआई, पीएफ, सर एक छोटा सा, एक प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह जो पे करते हैं वो कहाँ पे आएगा फिर? प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो टैक्सेस देते हैं, अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एग्जेम्प्टेड है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एग्जेम्प्टेड है, आपको क्वेश्चन का आंसर अपने आप पहले ये पूछना है, क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड एंटिटी है? अगर नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज में वो जीएसटी ले रहे हैं, जैसे मैं यहाँ लाइसेंस बनवाने गया तो उन्होंने मेरे से कन्वीनियंस चार्जेस के ऊपर जीएसटी लिया, लेकिन जो उसकी फीस थी उस पर जीएसटी नहीं लिया, तो इसका मतलब वो रजिस्टर्ड है, तो वो रजिस्टर्ड में जाएगा। 2 पार्ट बनेंगे, जैसे शेयर्स के लिए बताया मैंने कि अनरजिस्टर्ड तो नहीं है, रजिस्टर्ड है, एग्जेम्प्ट है वो, और जिस पे जीएसटी है वो जीएसटी, तो ये आपको देखना पड़ेगा। डॉक्टर्स का मैं बता दिया हूं, नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, ये मैं बता चुका हूं, आप अपनी ऑब्जर्वेशन में बता दीजिए, क्योंकि अगर वो जीएसटी से वो करेंगे कुछ, भाई एक क्वेश्चन को बार बार मत डालो सर। ये बिल्कुल एप्लीकेबल है डॉक्टर्स के लिए। और पेनल्टी एंड लेट फीस एक्सपेंसेस अपीयर एंड विच इज एज ए प्योर एजेंट। क्या मतलब प्योर एजेंट क्यों है? पेनल्टी किस चीज पे लग रही है? अगर पेनल्टी जो है आपकी डिसअलाउएबल है, P&L में आपने फिर भी डाल रखी है, तो आपको देखना है कि पेनल्टी जो है वो किस पे लग रही है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है, सपोज देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड यू, and I say that if you do not pay your payment in 10 days, then you have to pay 10% of penalty. Then I have to pay GST on it because I am registered in GST. But if you are paying the penalty to Exchequer, then in that case it is exempted. GST exempt है उसके ऊपर। फिर आपको ये देखना पड़ेगा एक्सचेकर उसके अंदर रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको वो
अनरजिस्टर्ड के कॉलम में लेना पड़ेगा। ESI मैंने बता दिया ऑलरेडी कि ये शेड्यूल 3 के आइटम मान लें, इसको सैलरी में क्लब कर दें। इंटरेस्ट में GST इनपुट कहाँ होता है वांसल साहब? गौरव जी, नहीं सर, बैंक इंटरेस्ट में तो नहीं, GST सर, लगता ही नहीं, इंटरेस्ट पे नहीं लगता है। चार्ज भी लगता है सर। सतीश भाई थोड़ा सा मेरे को बता दें, ये लोग एक्सपर्ट है, मैं नहीं हूँ, मेरे पे GST ना आता उतना ही पढ़ा है मैंने जितना यहाँ लिखा है। सर जब इंटरेस्ट प्रोडक्ट के लेट पेमेंट के कारण किसी लेट पेमेंट के कारण लगाया जाए तब वो सर इंटरेस्ट का नहीं, इनपुट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को 180 दिन की मेरी वो थी LC, तो जी सर। 180 दिन का जो इंटरेस्ट है वो तो प्रोडक्ट में आ जाएगा मेरी, और बिल्कुल उसके ठीक ऊपर है। उससे लेट होगा तो उस पर GST जी। लगेगा। लगेगा सर अगर GST लगेगा सर। तो उसमें आएगा सर वो लगेगा। रजिस्टर्ड में। मैंने सर बैंक के बारे में 3 चीजें बताई थी सर, इंटरेस्ट है और चार्जेस हैं जिसपे GST लग रहा है। अगर उस पे GST लग रहा है तो सर वो चार्जेस में जाएगा रजिस्टर्ड में। सर वी हैव टू इंक्लूड आउटपुट GST इन सेल वैल्यू, ऑल्सो इंक्लूड इन अदर एक्सपेंस। में वी हैव इंक्लूडेड, तो इसका मतलब आप इंक्लूसिव सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, सेल्स में भी GST जोड़ते हैं और खर्चों में भी GST जोड़ते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। आई हैव अ डाउट दैट दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज बीइंग मेंटेन्ड बाय एनीवन। पुराने जमाने में टर्नओवर दिखाने के लिए करते थे, आजकल तो सब GST माइनस करके कर रहे हैं। अगर फिर भी आप कर रहे हैं तो आपको जो P&L में डेबिट है वहां से लेके चलिए आप। Whether capital expenditure clause 44, yes, already done. अब PF ESI सब लोग पूछ चुके हैं। ट्रीटमेंट ऑफ डोनेशन एक्सपेंसेस, डोनेशन की एंटिटी रजिस्टर्ड हो सकती है, मेरा ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो सकता है, वो एक ऐसी एंटिटी को दिया है, ये आपको एसर्टेन करना है क्या वो GST के अंदर है। अगर आपको नहीं है तो आप जो है उसको जो है पहले टोटल एक्सपेंडिचर में ले लें और फिर अनरजिस्टर्ड एंटिटीज में डाल दें विद ए डिस्क्लेमर कि आपको जो डोनेशन रिसीट मिली है उस पर GST नंबर नहीं है। इस हिसाब से तो जो भी खर्चा करना है उसका साथ में हमारे को उस पार्टी को कहना पड़ेगा कि आप ये कंफर्मेशन करो कि इसके पास GST नंबर है या नहीं है सर, ईच अगर एंड एवरी एक्सपेंसेस। नहीं कर पाएंगे अगली बार तो आपके सॉफ्टवेयर ही आ जाएंगे सर। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ आंसर साहब, ऐसी भी बातचीत चल रही थी, मेरे को पता लगा है कि अगर जब आप उसको अपने अकाउंटिंग में डालेंगे और आप उसका कोई वेरिफिकेशन करना चाहेंगे तो वो आपको सर्च करके भी बता देगा आने वाले समय में AI टूल से कि ये आदमी कहीं रजिस्टर्ड है। वो रजिस्टर्ड एंटिटीज के साथ वो जो है वो मैचिंग करके देखेगा। मनीष गोयल साहब, इस बारे में मेरे को बोलने के लिए मना किया गया है कि तुमने अगर CS को कहा कि डिस्क्लेमर डालोगे तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करा जाएगा, इसलिए मैं कोई डिस्क्लेमर के लिए नहीं बोल रहा, मुझे काउंसिल ने कहा है। सर इसको टोटल में डालना है कि हेड वाइज डालेंगे इसको? फिर हेडवाइज कर दिया है वांसल साहब, मैंने बताया। यूटिलिटी देखेंगे तो अब ड्रॉप डाउन आ गई है, पहले एक ही थी, अब यूटिलिटी को इन्होंने चेंज कर दिया है लोगों के कहने पे। वो बढ़िया सर, उसमें कम से कम पता लगे ना भी इंटरेस्ट का खर्चा ये है, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। TDS पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आप जो है ये वैसे ही अलाउएबल नहीं है, आप इसको बिलो द लाइन या अगर उसमें डाल रहे हैं तो आप जो है इसको जो है अनरजिस्टर्ड एंटिटीज में डाल सकते हैं। अब ये निशान जी का रह गया, इसको देते हैं आंसर। कैन वी एक्सक्लूड लॉस ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट? Loss on sale of asset. Yeah, it is a new question. Sir, Let me think. सर ये एक प्रोविजन टाइप है सर, ये this is not an actual revenue based item or capital based item.
This ये is आप a टोटल में ना notional डालें, item है, sir. मैं हाँ, इसमें जैसे ये जैसे ना सर हम डालें। परचेज मतलब जो डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम कर उसमें डाल रहे हैं या वो नहीं कर तो रहे हैं, ये तो मेरे भी नहीं हिसाब से डालना। लॉस ऑन मेरे हिसाब से नहीं डालना चाहिए। इट्स अकाउंटिंग एंट्री एंड इट शुड नॉट बी। अब सर ये गौरव जी, ये ब्लॉक देखना है 7 क्वेश्चन कौन कौन से रह रहे हैं अभी। सर, ये अमित कपूर जी का भी क्वेश्चन पोस्ट हुआ। ब्लॉक क्रेडिट इज शोन बाय पार्टीज इन बुक्स विदाउट क्लेमिंग क्रेडिट इन जीएसटी. It is quite difficult to check whether these persons are registered in GST or not. We have to check each and every bill तो for reporting. आप Which is not बिल्कुल available. चेक करना है, ईच एंड एवरी बिल चेक करना है, और अगर आप टेस्ट चेक कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन में देना है, Observation. और फिर आपको अनरजिस्टर्ड में दिखाना है, और वहां लिखना है कि मैं नहीं सर दे पा इसमें रहा। एक चीज है हाँ जी, जीएसटी लेट फीस, जीएसटी लेट फीस इज ए जीएसटी डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड है क्या भाई जीएसटीएन में? जीएसटीएन को अगर दे रहे हैं तो वो रजिस्टर्ड है। बताओ भाई, जीएसटी लेट फीस क्या है? जीएसटी लेट फीस और एक्सपेंडिचर तो लायबल ही है। लॉबल है, लेकिन उसके ऊपर लेकिन जीएसटी थोड़ी लगता है, अनरजिस्टर्ड में ही जाएगा वो। सर वो जैसे डिपार्टमेंट को travelling जा वाला- रही है ना, फीस जो है वो तो उसी को जा रही है ना, डिपार्टमेंट को जा रही है। तो जैसे डिपार्टमेंट TDS थोड़ी रजिस्टर्ड हाँ, है, नॉन वही मैं कह रहा हूँ ना, रजिस्टर्ड। जैसे Registered टीडीएस का इंटरेस्ट जो है वो Last है उसी column. तरह से। अच्छा सर सर एक एक वो चीज ट्रैवलिंग का मैं खर्चा किसमें आपको आएगा? एक बात फिर बोलना चाहूंगा कि जब हमने पब्लिक एक्सपोजर पे वो 15 दिन के लिए दिया, तो किसी ने ये क्वेश्चन रेज नहीं किए, बाद में सारे निकल के आ रहे हैं। अरे भाई तभी पूछ लेते, हम आंसर दे देते, हम दिमाग लगाते उस टाइम। सर ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, बसेस का किराया है, रेलवे का किराया है, तो वो फिर कहाँ आएगा? रजिस्टर्ड है सर सारी, उसमें जीएसटी लगता है सर। Registered सब है, sir. रजिस्टर्ड है। एसी हाँ एसी नहीं एसी बसेस नहीं सर, जो लोकल यहाँ पे लोकल जो बसेस तो चलती वो है तो सर। एग्जाम्प्ट है ना सर, वो तो एग्जाम्प्ट है। वांसल साहब, मैं ना यूएस गया तो मैंने अपने भाई को बोला कि भाई मेरे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिखा यहाँ का, हमारे वहां का और यहाँ का क्या कंपैरिजन करके आऊंगा। तो उसने अपने सीपीए से बात किया, सीपीए कह रहा है भाई यहाँ तो अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा भाई देखना, मैंने जिद पकड़ ली। तो मेरे ब्रदर ने सीपीए को कहा यार उसको दिखाना है, कैसे चल के तू दिखा दे, बाहर से दिखा दियो साले को उसको। तो जो है उसने परमिशन ली और मुझे लेके गया। जब मैं बिल्डिंग में एंटर कर रहा था तो वहां पे लिखा था टच योर हार्ट बिफोर यू पे द टैक्सेस। ठीक है जी, ये कंसेप्ट है उनका। अंदर तो ले गया, वहां सब कुछ है, मुझे दिखा के ले आया, ऑफिसर कैसे बैठते हैं, कैसे क्वेश्चन होता है, कहाँ पे इंटेरोगेशन होती है, सब चीजें उसने दिखाई। लेकिन उसने ये मुझे कहा कि यहाँ पे हमारा जो सिटीजन है उसको ये पढ़ाया जाता है कि टच योर हार्ट बिफोर यू पे टैक्सेस। तो आप यहाँ टच योर हार्ट कर लो, अगर उस पर जीएसटी लगा हुआ है तो वो तो रजिस्टर्ड वाले कॉलम में जाएगा, एग्जेम्प्टेड है तो वहां जाएगा, पहले असर्टेन कर लो। ये लॉट ऑफ टाइम कह रहे हैं सीबीटीटी एक्सटेंड करेगी। भाई साहब सुनील भाई, अभी तो ये कोई एक्सटेंड नहीं है, इस बार सरप्राइज होगा जुलाई में। आप ये मत सोचो कि इसकी वजह से एक्सटेंड करेंगे। अगर क्लाइंट नहीं दे रहा है तो शॉर्टकट वाला बताया हुआ है, जो मुझे बोला गया है, मना किया गया है, लेकिन फिर भी मैं बता दिया, डिस्क्लेमर दे के आगे बढ़ू। डिमांड ऑफ पीएफ ईएसआई लेट फीस टू बी इंक्लूडेड इन लास्ट कॉलम, ये सब जो है देखिए, ईएसआई पीएफ जो है वो मैंने शेड्यूल 3 से रिलेटेड है। टीडीएस जीएसटी और टीडीएस ये शेड्यूल 3 से रिलेटेड नहीं है, इसको आपको अनरजिस्टर्ड में देना है। आरओसी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, आरओसी अगर जीएसटी चार्ज ही नहीं करता है, लेवी जो है मिनिस्ट्री की है, नॉन जीएसटी। सर अगर 5,000 से ऊपर से ज्यादा की फीस है ना आरओसी की, तो फिर वो आरसीएम है, उसमें पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट मोर देन 5,000 तब भी रुपीज। वो लास्ट वाले कॉलम में आएगा आरसीएम भी। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस और सेल ऑफ एसेट हम बता चुके हैं। चेंज इन इन्वेंट्री शुड कम अंडर कॉलम 44 नो। लेट फीस ऑलरेडी आई हैव टोल्ड। हाँ जी भाई, अब और मत करो, डोनेशन बता चुका हूँ सर रिपीट जो क्वेश्चन मत करो। सर एक चीज बताना कि हाँ। आजकल क्या है, जैसे कि हमने एक्सपेंस बुक कर लिया अपनी बुक्स के अंदर हाँ जी 21-22 में, जीएसटी डिपार्टमेंट ने किसी जिससे हमने एक्सपेंस बुक किया उसकी बैक डेट में जाके कैंसिलेशन कर दी। हाँ, नाउ कोई व्हाट बात इज द नहीं, स्टेटस? लेकिन रजिस्टर्ड है वो। मैंने दे दिया, पेपर पे दे दिए मैंने तीनों। चाहे but आपने वो- बैक डेट में जिस डेट में आपने एक्सपेंडिचर किया, जिस डेट में आपका वाउचर है,
उस डेट में वो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड में जाएगा। कुछ Okay. YouTube वाले बिल्कुल जुड़े रहे, मैं उनके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा। उनकी मर्जी है, बताए तो ठीक। अभी YouTube पे क्यों चले गए मेरे को समझ नहीं आया, जबकि कैपेसिटी बाकी है। आप कह सकते हैं टेस्ट चेक बेसिस पे, लेकिन मैंने बताया है राकेश गुलाटी जी कि टैक्स ऑडिट ट्रू एंड करेक्ट है, ट्रू एंड फेयर नहीं है। आपका ब्रोकरेज एंड डैमेज आएगा बिल्कुल, ब्रोकरेज के ऊपर तो ब्रेकेज एंड डैमेज, एक मिनट, ब्रेकेज एंड डैमेज पे जीएसटी लगता है भाई। अगर मेरी कोई ब्रेकेज हो गई तो मुझे जीएसटी रिवर्स करना पड़ता है ना। तो नहीं ये सर, तो इस पे डिवाइडेड ओपिनियन है सर। ब्रेकेज क्या? इज, अगर रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर ब्रेकेज है तो इट इज अ पार्ट एंड पार्सल, जैसे वो ट्रेडिंग लॉस है उसी तरह से ही है जी। नहीं, पर ब्रेकेज के ये ऊपर तो मुझे मेरी इंटरनल आइटम होगी ना, ये बहुत अच्छा हाँ, क्वेश्चन इंटरनल पूछा है होटल विजय। इंडस्ट्री में सर, जो बहुत मेजर कई बार एक्सपेंस होते हैं। विजय जी ने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। लेट मी जस्ट अप्लाई माय माइंड, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। आपके अपने ही परचेजेस में से कोई चीज ब्रेकेज हो गई है, तो जब आपने परचेज में उसको रिपोर्ट कर दिया है तो शायद मेरे हिसाब से ये एक्सक्लूडेड आइटम में ले लेना चाहिए, इसको भी आपको एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा इफ यू एग्री विद मी जस्ट टेल अस। इसका मेरे इंटरनल है। ओके, ही इज सेइंग ओके, ही इज आल्सो सेइंग थैंक यू। बस करो, क्वेश्चन आंसर में चैटिंग नहीं करनी है विजय भाई। नाउ लेट मी कम टू 3 पॉइंट्स। पहले मैं एक बार इंड AS 116 का इम्पैक्ट मैं आपको एक बात बता रहा हूं, क्योंकि इनकम टैक्स की रिटर्न आपको हिस्टोरिकल बेसिस पे देनी है, ना कि इंड AS के बेसिस पे। इसलिए इंड AS का कोई भी इम्पैक्ट आपका टैक्स ऑडिट में नहीं आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है जी। दूसरा, पीयूष बंसल साहब पूछ रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ लेबर सेस, ये भी मेरे हिसाब से एग्जम्प्टेड आइटम है शेड्यूल 3 की तरह, और ये सैलरी वेजेस से रिलेटेड है, तो इसलिए आपको टोटल में नहीं लेना है। सर, हाउ टू रिपोर्ट लीज रेंटल, ट्रीट फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन वेयर आई पेड जीएसटी ऑन एक्चुअल लीज। आपको एक्चुअल लीज लेनी है, क्योंकि आपको एक्सपेंडिचर मेरे हिसाब से P&L में 116 में आपको एस्टिमेट बेसिस पे, जैसे भी जो इक्वलाइज बेसिस पे क्लेम होता है, लेकिन इनकम टैक्स में आपको एक्चुअल बेस पे ही अलाउ होता है। ये मेरे हिसाब से हिस्टोरिकल कॉस्ट है। इफ समथिंग इज एल्स, आई प्रेजेंटली आई डू नॉट नो अबाउट द इंड AS मैंने अपने गाइडेंस नोट में भी कहीं खास डील नहीं किया। अब सर 2 क्वेश्चन और मैं ऐसे लूंगा, उसके बाद जो ये 3 क्वेश्चन मेरे पास पेंडिंग रह गए। 5 क्यों रह गए भाई, अभी तो 3 थे। सर वो और ऐड हो गए हैं 2 क्वेश्चन उनको बात आपकी डिस्कशन सुनने के बाद ना कई और पॉइंट दिमाग में आते जाते हैं, फिर वो कोई बात बात क्वेश्चन ऐड नहीं, कर रहा है। मैं अपना सिलेबस भी तो पूरा कर लूं, मुझे 6:45 बजे जाना है कहीं, तो कोशिश कर रहा हूं कि मैं 6:45 से एक्सीड ना करूं, पर आप लोग पकड़ के रखेंगे तो मना नहीं कर सकता हूं मैं। सर, अब मैं ये बताना चाहूंगा, इशूट ने 2 जगह अपने चेंजेस किए, जो कि पब्लिक में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला, इशूट ने चेंज किया है कंप्यूटेशन ऑफ टर्नओवर इन द केस ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। इसके अंदर गाइडेंस नोट में हमने जब एग्जामिन किया तो हमें ऐसा लगा कि इसको रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि पुराने वाले गाइडेंस नोट में हम ये कहते थे कि प्रीमियम पेड एंड लॉस और प्रॉफिट बोथ आर टर्नओवर। However, now we realized it. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऑप्शन खरीदता हूं जिसमें मैं प्रीमियम देता हूं। मैंने जब ऑप्शन खरीदी उस टाइम मैंने 5,000 रुपये प्रीमियम दिया, और जब ऑप्शन स्क्वायर अप हुई तो मुझे
लेट अस से 4,000 प्रीमियम वापस आ गए और मेरा टोटल जो प्रॉफिट है वो या लॉस जो है वो कंप्यूट करना है। तो इश्यूड ये कहता है that whatever way you are making an accounting, we are not concerned. We are concerned with the fact that whether you are liable to do the tax audit or not. For that, you have to calculate the turnover. Because in earlier regime, when 1 crore was limit, the question of the turnover was not much relevant. But now the turnover is 10 crore rupees, as if the payments and the receipts are less than 5%. The limit for tax audit is 10 crore. So most of the people are now in problem. It's a huge job. Now the issue says what? Issue says, first of all, you determine how much net loss या profit you have done in that transaction. So initially, if I have paid 5,000 as a premium, let me park 5,000 as my turnover. And then if 4,000 I have received back and I have lost 1,000 rupees, please do not take this 1,000 rupees as part of your turnover. However, for the purpose of taxability, your 1,000 will be the net loss. Now, if I am a option writer, अगर मैं ऑप्शन राइटर हूं तो प्रीमियम मुझे रिसीव होगा और कंक्लूजन पे हो सकता है मेरे को कुछ प्रीमियम वापस देना पड़ जाए या हो सकता है मुझे 0 वापस देना पड़े। तो इसलिए प्रीमियम राइटर को, जो ऑप्शन राइटर को जितना प्रीमियम आएगा वो उसकी टर्नओवर मानी जाए, और अगर वो वापस करेगा तो जो वापस वाला एरिया है उसको इग्नोर करना है, ऐसा हम लोग उसके अंदर कहना चाह रहे हैं। सो दिस इज द वे वी वुड लाइक टू गाइड यू for computing the tax audit applicability so far as option derivative is concerned. If it is a purchase or sale of share from stock in hand, then the sale value is turnover. If it is a day trading, then any loss or profit on that script, not that day, will be the turnover. So these are the few things which are there. अभी यहाँ पे कुछ लोगों ने हैंड रेस किए हैं। एक मिनट, प्लीज कंट्रोल, प्लीज क्लोज द पीपीटी। अच्छा जी, लो जी जी बताएं हाँ सर। जी। अब जिन्होंने नवीन कुमार जी ने हैंड रेस किया हुआ है। नवीन हाँ, जी बोलिए। पूछिए। नवीन जी। सत्य प्रकाश जी ने भी रेस किया। नवीन जी को गौरव जी, मैं नवीन जी को वैसे ही हो गया हुआ, काफी टाइम से ही है वो। सत्य प्रकाश जी, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए सत्य प्रकाश जी। अच्छा सर, ये जो 5% वाला इसका मतलब लिमिट कैलकुलेट करने का जरा वो समझा देंगे कैसे? वो अभी समझाता हूँ, अभी अच्छा, बताता please, हूँ sir. सर। पहला अच्छा, एक चीज और डेरिवेटिव वाला सर। क्वेश्चन खत्म करूं फिर उस पे आ जाऊंगा। ठीक है, 2 ठीक है, पॉइंट ठीक है। और भी है मेरे पास। ठीक ठीक है, आप हैंड डाउन कर लीजिए सर। ठीक है। चलिए, और कोई है? अब मैं आ जाता हूं जो आपका 5% वाला क्या है। ये डेरिवेटिव, निशान जी का तो आंसर हो गया। देखिए, अगर डेरिवेटिव है तो उसको ब्रोकरेज तो लगी रही है ना। तो मैंने शो करा है कि जो उसको नेट प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसमें से ब्रोकरेज जो है वो आप ब्रोकर में रजिस्टर्ड में डालेंगे, बाकी सब अनरजिस्टर्ड में डालेंगे। सर राइटर के केस में, हाँ बोलो कपिल। राइटर के केस में आप कह रहे हो 5,000 प्रीमियम जो रिसीव किया वो हमारी टर्नओवर में चला जाएगा। हाँ जी। लेकिन उसके बाद अगर वो प्रीमियम कुछ भी वापस नहीं करना पड़ा फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उसमें लॉस हो गया, लाइक 5,000 की बदले 7,000 लॉस या देना पड़ा। प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं। सवेरे भी लंबी 2000 बात होगी कपिल आपसे मेरी इस बात पे। सर 5,000 रिसीव करने के बाद 2,000 का जो लॉस होगा वो भी तो टर्नओवर में जाएगा ना फिर। नहीं,
क्योंकि कपिल सर, आपने यही 5000 ले लिया, कपिल सर, यही तो यही डुप्लीकेट हो रहा था, डबल हो रहा था। अपनी सुबह भी डिस्कशन हो रही थी सर, यही अमेंडमेंट है सर, थोड़ा ध्यान से इसको इंटरप्रेट करना। और जीरोधा ने मेरे को, हम लोगों को प्रॉमिस किया है कि जीरोधा हमारे इश्यूड के गाइडेंस नोट के हिसाब से अपनी टर्नओवर अपने इन्वेस्टर्स को दोबारा देगा। और आपको एक बात बताता हूं, अगर टर्नओवर के लिए एक फॉर्म 10 DB होता है, जो लोग शिल्पी या और कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर यहाँ यूज करते हैं नॉर्थ इंडिया में, दे कैन टेक दैट फॉर्म 10 DB। 10 DB भी टर्नओवर निकालता है वहां। विजय भाई पूछ रहे हैं प्रीवियस ईयर सेल टैक्स डिमांड पेड इन करंट ईयर। यार ये कोई बात थोड़ी है, वो तो है क्लॉज 44 में यहाँ पे वो एंटिटीज जो है जहां पे वो आएगा नॉट चार्जेबल टू टैक्स, लास्ट कॉलम। आप चाहे परचेज कैपिटल आइटम उसके थ्रू ले जा रहे हैं, नहीं ले जा रहे, इश्यूड का स्टैंड है, यू हैव टू टेक। अब सर मैं दूसरे आ जाता हूं, जो 5% वाला क्या है। देखिए मैं इसको एग्जाम्पल से बताऊंगा। गौरव जी, गौरव अग्रवाल जी, हाँ जी सर बताइए। देख लेना, अब कोई क्वेश्चन नहीं आया है, मेरा ठीक है। P&A बिल्कुल क्लियर है, कैशियर का कैश टैली है। अब मैं 3 चीजें और बताना चाहूंगा। पहला, ये 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ से नीचे, 10 करोड़ तक, ये क्या कंसेप्ट है? सर रिटर्न के अंदर एक कॉलम है जहां पे आपको यस नो भरना है। मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूं। पहले आपको ये देखना है कि आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ से कम, 10 करोड़ तक है, तो आप ए फिगर जो आपकी टर्नओवर है उसको आप कंप्यूट करके राइट हैंड साइड पे लिख लें। फिर आप 2 क्वेश्चन और देंगे। अगर आपकी 10 करोड़ से नीचे है, 1 करोड़ से ऊपर है, तो आपको टैक्स ऑडिट करवानी है या नहीं करवानी है, उसके लिए 2 क्वेश्चन के आंसर, दोनों में अगर एक में भी यस आ गया तो आपको करवानी है, और दोनों में नो आया तो आपको नहीं करवानी। अब क्या आंसर? पहला, ऑल पेमेंट मेड। अब यहां पे उन्होंने कहा चाहे एक्सपेंडिचर के लिए करनी है, कैश में करनी है, चेक में करनी है, आप सारी पेमेंटें ले ली। इस पे इन्होंने कहा एक्सपेंडिचर ले लीजिए, कैपिटल पेमेंट ले लीजिए, लोन रीपेमेंट ले लीजिए। अगर मान लीजिए मैंने 9 करोड़ 50 लाख की टोटल सेल्स, 8 करोड़ की परचेज करी, 8 करोड़ में से 6 करोड़ की पेमेंट करी इस साल की, 2 करोड़ की करी पिछले साल। ये जो मैं कंप्यूट कर रहा हूं, ये फिगर 10 करोड़ से एक्सीड हो सकती है, और टर्नओवर आपकी नहीं होनी चाहिए, वो आप ऑलरेडी पार कर चुके। अब मैंने 8 करोड़ की टोटल पेमेंट करी, 6 करोड़ करंट के मैंने परचेजेस की थी, 2 करोड़ पिछले करी। उसके बाद मैंने 6 करोड़ के लिए मान लीजिए लोन रिपेमेंट कर, और मैंने 1 करोड़ की कैपिटल एसेट, 8 से 14 और 1 15, 15 का 5% निकालने 75 लाख। फिर आप आए कैश के ऊपर। अगर इस 75 लाख रुपए से कम आपने पेमेंट कर रखी हैं, तो आपको ये वाले क्वेश्चन में नो हो गया। अब आप आगे बढ़े। अब आप रिसीट साइड पे आए। रिसीट साइड पे जितनी भी आपको रिसीट हुई है ड्यूरिंग द ईयर, वेदर रिलेटेड टू दिस ईयर और रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर और प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर, आपके पास जितनी पेमेंट आई है उसको आप जो है वो जोड़ लें। उसके बाद आपके जितने लोन आपके आए हैं, जितनी कैपिटल आई है, जो पार्टी से नहीं आई है, वो आप उसमें जोड़ लें। उसको जोड़ने के बाद उसका टोटल करें। अगर वो 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा, 15 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, उससे कोई लेना देना नहीं, वो टोटल करके उसका 5% निकालें। और अगर आपकी कैश के अंदर रिसीट 5% से कम है तो आपको कोई ऑडिट नहीं करनी। और क्वेश्चन नंबर 2 में यस आ गया तो क्वेश्चन नंबर 3 में जाने की जरूरत नहीं। अगर क्वेश्चन 2 में नो आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 में यस आ गया, आपको टैक्स ऑडिट करनी है।
अब यहाँ पे लोग मेरे को क्वेश्चन पूछते हैं, सर हम 48(3) के अंदर लिख के देते हैं, सर checks are not coming back to the client and as such it is not possible for us to verify whether the payments have been made through checks or not, via account पे checks or not. तो सर उस केस के अंदर हमारा ये सजेशन है कि आप क्लाइंट से अंडरटेकिंग ले कि जो पेमेंटें कर रहे हैं जो कि चेक से हैं, देखिए प्लीज बी केयरफुल, आरटीजीएस, एनईएफटी, ट्रांसफर, पेपॉल, पेटीएम, ये सब पेमेंटें आपकी अकाउंट पे ही मानी जाती है। सिर्फ आप जो चेक फाड़ के देते हैं जो कि आज की डेट में शायद 1000 में से 2 हैं, अगर वो 5% से ज्यादा के हैं टोटल के, तो आप क्लेम कर सकते हैं कि एसएससी के पास क्योंकि एविडेंस नहीं है, उससे आप मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में लें कि मेरे पास एविडेंस नहीं है, मैं नहीं आपको बता सकता, एज सच अंडर दिस प्रेजम्पशन यू मे कंडक्ट माय ऑडिट। और उस केस में ध्यान ये रखिएगा, जब एसएससी रिटर्न भरे तो वहां पे यस करे, वहां नो ना करे, क्योंकि वहां पे 5% से ज्यादा आपको कैश। अब बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि जो है जी वो हमारा एसएससी कह रहा है जी मेरी तो ऑडिट कर दो, अब मैं क्या करूं? द थिंग इज दिस, इफ स्टैट्यूटरी इट इज नॉट अलाउबल, यहाँ पे चॉइस नहीं है, लॉ में बोला है कि ऑडिट होनी है नहीं होनी, अगर होनी है तो करो, नहीं होनी है तो छोड़ो। लेकिन अब मैं एक एग्जांपल दूं, हम में से बैंक ऑडिट किन्होंने करी है इस बार? कोई 2-4 लोग कोई बताएं। आपने बैंक ऑडिट के साथ टैक्स ऑडिट करी है क्या इस बार? कौन सा बैंक का गौरव? सर ज्यादातर बैंक नहीं करवा रहे टैक्स ऑडिट आज की डेट। लेकिन आपसे एक शेड्यूल भरवाते हैं जिसमें वो एनेक्चर भरवाते हैं जो कि टैक्स ऑडिट में जाते हैं, टीडीएस की भी इंफॉर्मेशन और वो भी लेते हैं सर। तो क्या आप ये बताएं, आप जब अपना यूडिन क्रिएट करते हैं तो वहां पे टैक्स ऑडिट दिखाते हैं आपने करी? नहीं सर, नहीं करी। तो आप अगर ऐसा कोई क्लाइंट आपको कहता है तो आप उसको अदर पर्पज के अंदर उसका 3CD फॉर्म में नहीं रिपोर्ट करें, 3CA में नहीं, लाइक जो है वो आप उसको कहें कि भी तुम मुझे कहो कि इस फॉर्मेट में मेरे को रिपोर्ट कर दो, लेकिन उस पे 3CA 3CD ना लिखें और उसका जो यूडिन भी क्रिएट करें, अदर पर्पस स्पेशल पर्पस जो है सर्टिफिकेशन में क्रिएट करके अगर कोई चाहे तो आप उसको दे सकते हैं। बैंक वाले जिन केसों में बैंक्स के लोन है तो वहां पे तो बैंक्स वाले वो कहते हैं कि ऑडिटेड बैलेंस शीट दो जी। ऑडिटेड बैलेंस शीट अदरवाइज दे सकते हैं सर, आप आपको ऑडिट के अदर पर्पस के सर्टिफिकेशन का प्रोसेस पूरा दिया है, आप दे सकते हैं, उसका फॉर्मेट है, रिपोर्ट का भी फॉर्मेट है, उसके ऊपर ऐसे है पूरा एक। चलिए अब 1-2 क्वेश्चन में फटाफट ले लेता हूं। एक हमने 43B के अंदर थोड़ा सा चेंज किया है। हमने ये पाया कि 40A7 जहां ग्रेजुटी जो कि रजिस्टर्ड मतलब अनरजिस्टर्ड या आप नॉन डिडक्टेबल जो डिसअलाउएबल जो ग्रेजुटी थी वो हम वहां रिपोर्ट करते थे, और उसके बाद हम फिर 43B में जाके फिर उसको दोबारा रिपोर्ट करते थे। उस केस के अंदर ये डबल डिसअलाउंसेस हो रहे थे, डबल रिपोर्टिंग हो रही थी, इसलिए हमने अपने मेंबर्स को एडवाइस किया है कि अगर आपने 40A7 में ऑलरेडी ग्रेजुटी डिसअलाउ कर दी है, 40A7 में रिपोर्ट कर दी है, तो आपको 43B की रिपोर्टिंग में नहीं दिखानी है दोबारा। इसके अलावा एक 16B क्लॉज के ऊपर बहुत झगड़ा चल रहा है, बहुत सारी अपीलें हम लोगों ने फाइल करी हैं। क्या हुआ कि जैसे मैं प्रोप्राइटर की एक ऑडिट कर रहा हूं तो मैंने 16B में लिख दिया कि ये जो है मैंने जो है P&L में नहीं क्रेडिट किया, कौन सी इनकम, बैंक इंटरेस्ट, हाउस प्रॉपर्टी की, कैपिटल गेन की, मैंने ये रिपोर्ट नहीं की। तो उस केस में ये हाउस प्रॉपर्टी मैंने हाउस प्रॉपर्टी में दिखा दी, बैंक इंटरेस्ट में दिखा दिया, कैपिटल गेन में दिखा दिया, लेकिन इनकम टैक्स की CPC से वो दोबारा एडिशन होके आ गया। आई हैव बीन टोल्ड that issued has already brought this matter categorically twice to the notice of the income tax.
The income tax department is looking into this. The issued is saying the member must continue to show in the 16B itself. We are handling this matter and we are confident that the CPC will suo moto make the rectification of such for- adjustment. Sir, for current year also, we continue to show. The issued has taken a stand. Okay. Now, if you are asking me a practical question, I am not your council member. I am a now practical person. I want to ask one question. Are these reportable in the P&L? Are they part of the business? No. No. So what I say, there are two documents which you are required to take. One document you have to take from your client is your appointment letter and engagement letter. Appointment letter or engagement letter. In engagement letter, you appoint yourself only for business purpose. So if you are taking your appointment for business purpose, then you are not required to report the personal things of the client. क्योंकि कंपनी में ये प्रॉब्लम आएगी नहीं, पार्टनरशिप में ये प्रॉब्लम आएगी नहीं, ये प्रॉब्लम आएगी आपको इंडिविजुअल्स। उस केस के अंदर आप इसको यहां रिपोर्ट ना करें, और अगर फिर भी आपका मन कर रहा है तो ऑब्जर्वेशन में जाएं और वहां जाके ये बोलें कि ये क्रेडिटेबल टू दी P&L नहीं है, however these are the income which assessee has said he will show at relevant time in his return of income. That's all. ठीक है जी। सिमिलरली जैसे LIC का रिफंड आ गया तो हम ये लिख देते हैं कैपिटल नॉट क्रेडिट टू P&L, तो वो भी आपके डिसअलाउ हो रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि these are the credit which are not in the nature of income, as such are not being reported in capital receipt. तो वो आपका वहां सोल्यूशन। ये मेरे पास टोटल है। इसके अलावा अब आपके कोई क्वेश्चन, चाहे ऑफिस बेरर चाहे कोई और पूछना चाहे तो पूछ सकता है। चैट में कुछ 5 चीजें आ रही है, चैट में तो मुझे समझ, चैट में तो हमारी इंटरनल है। शीतल गुप्ता जी ने हैंड रेज किया हुआ जी। हाँ जी, उनको करिए, पूछिए जी शीतल गुप्ता जी। नहीं पूछ रहे हो। चलिए, एनोनिमस ये पूछ रहे हैं कि बार बार मुझसे कि जो एक्सचेकर्स को पेमेंट दे रहे हैं वो कहाँ दिखानी है। देखिए सर, मेरी ओपिनियन में वो टोटल पेमेंट में आएगी और नॉट रजिस्टर्ड में आएगी अगर एक्सचेकर रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं स्टेट है। व्हाट यू कैन डू, अगर आप उसको यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट के गाइडेंस नोट में कोई नहीं है, अगर आप फिर भी ये देखना चाह रहे हैं कि वो पेमेंट बहुत ज्यादा है, जैसे मान लीजिए कस्टम ड्यूटी है, तो उस केस के अंदर आपने एक्सचेकर को दिए तो वो आपको लास्ट कॉलम में देनी है। व्हाई यू आर अफ्रेड ऑफ गिविंग इन दी लास्ट कॉलम? योर केस विल नॉट बी सिलेक्टेड ओनली बिकॉज ऑफ दिस थिंग। आपकी नेचर ऑफ बिजनेस भी तो देखेगा। एंड इफ द सेम इज पेड इन नेक्स्ट ईयर, हाउ टू रिपोर्ट? कोई रिपोर्ट नहीं करनी है टैक्स ऑडिट के अंदर। अगर आपकी 43B में ग्रेजुएटी पिछले साल डिसअलाउ कर ली थी तो आप इस साल उसको अलाउ में बिल दिखा दें, डिसअलाउड लास्ट ईयर, और अगर लास्ट ईयर डिसअलाउ नहीं करी थी 43B में तो कोई रिपोर्टिंग नहीं। अब ये सर एक लास्ट क्वेश्चन जो गौरव जी ने शुरू में कहा था कि वो 40AD 44AD, वैसे अब क्वेश्चन खत्म हो गया क्योंकि जुलाई की रिटर्न चली गई। मैं फिर भी ये रेज करते रहते हैं, और लेट लतीफ वालों को भाई साहब मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। चलिए 2 मिनट में मैं जो है वो सत्यप्रकाश जी आप कुछ पूछ रहे थे, बताइए, आपका आंसर हुआ नहीं हुआ? सर वो ये बता दिए छोटी चीज कि मुझे टोटल परचेज पे लेंगे, मटेरियल कंज्यूम पे लेंगे फिगर? इसमें 5% वाले में? नहीं 5% में। वाले में भी, और जो 44 में भी दिखानी है वो। 44 में परचेजेस लेंगे, कंजम्पशन से कोई लेना देना नहीं है। और 5% वाले में? 5% वाले में पेमेंट से लेना देना है। ठीक है सर, ठीक है। और उसका परचेजेस से भी कोई लेना देना नहीं, और उससे भी कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ठीक है। निशांत गर्ग जी।
एक हाँ, सेकंड sir. मेरा जरा बैटरी एक एक निशान जी पूछिए। हाँ जी सर, जैसे 16B में जो हमने रिपोर्टिंग्स की थी उसके उसके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिमांड ऐड करके नोटिस जनरेट कर दिए। हाँ तो जी ऐसे ही जब हम ऑप्शन के अंदर हमारा टर्नओवर का मीनिंग दूसरा है और फ्यूचर के अंदर अगर हमारा लॉस आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बट टर्नओवर हम एज पर इंस्टीट्यूट गाइडेंस नोट कंप्यूट करके रेशो कैलकुलेट करते हुए टर्नओवर के कॉलम में देंगे तो वहां भी डिफरेंस आ जाएगा। इसमें भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें नोटिस इशू कर सकता है फिर। सर सर, एक अभी बात तक तो बताओ, इस केस में नहीं आए। नोटिस पिछली बार आपको भी इशू यही कर था। रहा है क्या डिपार्टमेंट? एसएसजी को हम- कर रहे हैं ना? अगर जी। उसकी रेशियोज की वजह से उसका केस आएगा तो कल को जैसे अभी इलाहाबाद ने 50 लाख रुपए लगाए हैं जी बेसलेस पे, अगर इसी बेस पे वो केस लगाएगा उसको डिस्क्लोजर तो देना पड़ेगा किस वजह से केस लगा रहा है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जब हम टर्नओवर की फिगर रिपोर्ट करेंगे से हमारी डेरिवेटिव की टर्नओवर फिगर आ जाती है 50 लाख, बट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेरिवेटिव का लॉस है 2 लाख का। तो जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो 2 लाख का लॉस दिखाया, बट ऑडिटर ने उसके अंदर टर्नओवर की फिगर रिपोर्ट कर दी 50 लाख। तो वहां पे सर बहुत ऑडिटर कहाँ टर्नओवर की रिपोर्ट एनेक्सर में करता है सर? एनेक्सर में ही तो सर। तो फिर वहां पे क्या हुआ? mismatching- आपने लॉस किया है ना, जी वो तो स्टॉक एक्सचेंज से भी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। ठीक है जी। तो तो व्हाट हमें इज तो द टर्नओवर ट्रबल? की फिगर रिपोर्ट एज पर गाइडेंस नोट टर्नओवर की फिगर ही रिपोर्ट करनी है। हाँ जी। ठीक है जी, ओके और आप एक और बात बताओ तो निशान भाई, जी आपको जो बैलेंस शीट लगानी है उसमें जी। टर्नओवर आप कैसे दिखा रहे हैं, इस शूट को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, ये तो हमारे वर्किंग पेपर का ही पार्ट है हाँ टर्नओवर तो। जी। ठीक है जी, थैंक यू सर। गौरव जी, 44 एडी में एक चीज सिर्फ मैं बोलना चाहूंगा, अगर मान लीजिए मेरी टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है, या पहला एग्जांपल लेते हैं, मेरी टर्नओवर 90 लाख रुपए और मेरा प्रॉफिट 6% से कम आ रहा है, मैंने चेक से काम किया हुआ है सर, क्या मुझे 4484 में ऑडिट करनी है? इसके लिए मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि आप मुझे ये बताएं दैट हैज एवर इन द पास्ट आफ्टर 1st April 2017 you have taken the benefit of 44 AD, or I will say whether you have opted for 44 AD. अगर 2022 में आप कर रहे हैं अपनी रिटर्न फाइल 2021, 20, 19, 18, 2017 के अंदर ये कानून नया बना था। 4484 जो आज की डेट में है ये 1 अप्रैल 2017 से आया। अगर पिछले 5 साल में आपने कभी भी 44 एडी लिया है तो आपको 44 एडी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट 6 या 8% से कम प्रॉफिट दिखा रहे हैं आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। अगर मान लीजिए 2020 में आपने 44 एडी लिया, उसके बाद आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो गई, आपने ऑडिट करी, आप बाहर चले गए, या आपकी प्रोफेशनल इनकम आ गई, या आप 44 एडी से बाहर चले गए, जब आप दोबारा आ रहे हैं और आपने फिर पीछे कभी 44 एडी लिया है तो आपको 44 एडी में ही जाना। अगर आपने 44 एडी नहीं लिया है, एक सेकंड गौरव, हाँ जी, हाँ मैं वेबिनार में अगर आपने 44 एडी नहीं लिया है, दिस मे बी योर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, then what you do, you are not required to get your accounts audited at all. What you have to do, prepare your profit and loss account or income expenditure account and also your balance sheet.
fill it in the that columns, not required for any audit under 4484. However, this is different in the case of the profession. Profession can come and go, switch in, switch out in next year. Today, I have less than 50 lakh rupees of my turnover. I take the benefit of 50%. Tomorrow, I have less than 50 lakhs, but I do not want that I should pay 50%, get your accounts audited. But so far as business is concerned, you have no option for next 5 years. Even if you are having more than 8%, so either you have 4480 or get your account audited continuous for 5. Then 6th year you will be out. Again new. So this is the concept of 4480. ठीक है जी? और कोई क्वेश्चन हो तो बताएं. Exchequer was payment was asking 5% for tax payment. मैं समझा नहीं. Anonymous attendee आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया. Was asking for 5% limit for tax payment. ये मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया. Next ले लो सर. Purchase of land or building, whether revenue or capital. ये जो है जी कैपिटल माना जाता है. It cannot be revenue और आपको उसमें देना है और ये exempted में आएगा क्योंकि लैंड परचेज के ऊपर जीएसटी लगता नहीं है. ये शेड्यूल 3 के आइटम है, इंस्टीट्यूट ने भी कहा है. चलिए सर, आपके क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए. और कोई हैंड रेज किया होगा सर. हाँ जी अनिल जी पूछिए. और अटेंडी में पूछ लीजिए अगर किसी ने हैंड रेज करना है तो. Sir, some of the very senior members have joined us also, sir, for the quite. Acknowledgement करो सर, आपको जो भी करना है मैं तो थैंक्स कर ही दूंगा. Kamlesh ji has shifted to Bombay, sir, now, but he is quite interested always to join us in any of the mode. Kamlesh ji, any of your valuable suggestions, sir? Any of your queries, sir? Kamlesh sir, are you listening, sir? Unmute करो ना उनको. कंट्रोल रूम कमलेश अग्रवाल जी को करिए. हाँ अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को. पैनल में आ गए हैं. I think मेरी कोई क्वेरी नहीं है जी. अच्छा जी नमस्ते सर. स्वास्थ्य ठीक है? कमलेश जी नमस्कार सर, हमारी तरफ से. नमस्कार नमस्कार. We miss you sir. थैंक यू वेरी मच. चलिए जी और कोई. So with this I am thankful to each one of you for joining in so large number, and I am also thankful to my younger brother Gaurav Gupta for putting me for this seminar and Income Tax Practitioner Association of Amritsar. अब मैं एक छोटी सी और बात बताऊंगा सर. मैं पहली बार जब आया था 1998 में अमृतसर में, तो इसी टैक्स बार में तब ब्रांच नहीं चलती थी, एक ही इकट्ठे होते थे. कितनी अच्छी बात है. चलिए सर. Thank you. Sanjay Agarwal ji for such a wonderful and elaborated discussion. Now I would request Gaurav Gupta ji again to please formally say a vote of thanks to you. Thank you so much sir. संजय जी तो इनको देख देख के सर बड़े हुए हैं और सर का साथ और सर की सपोर्ट के बिना इतने एक elaborated topic sir which the government is asking chartered accountants to perform their duties for every aspect rather. पहले सर ये सर GSTR 9 में ये सारे के क्लॉजेस थे, पहले उसको लगाया फिर हटाया, अब ये फिर वो GST 9 की के हिसाब से एप्लीकेबिलिटीज की बनाते चले जा रहे हैं. Rather, we are thankful to government also sir for providing us this opportunity to serve them at large, so that their crystal work is done by chartered accountants only. My vote of thanks to all the participants, President sir, Joint Secretary sir, Vansal ji, Gaurav ji, for providing the opportunity to the members to listen to the intrinsic value of the thing, sir. I think sir, 72 questions are answered live. At any point of time, 288 members were with us, and around 50 members were on the YouTube also, sir. So it was more than a 300 member participation, sir. Big hats off to you, sir, for sparing your valuable time and being available
always available like anything, like the mentor who keeps showering your blessings on us. And it's a wonderful opportunity for rather ITPA also to join hands with the Voice of CA. And I'll request, sir, please be with us in the times to come for the various aspects to discuss in the times to come. Rather, it may be the GST. Please keep joining us with the VOCA platform for any of the valuable sessions which you people are planning, sir. As I being the moderator and taking the charge at Amritsar, I'll request you to please arrange joint sessions also in times to come. Now I will request Gaurav Agarwal ji to please mark the concluding remarks, sir. Thank you so much, sir. Over to Gaurav ji. Thank you very much, Gaurav Gupta ji. It is really wonderful that we have more than 300 members, thanks to Sanjay Agarwal ji only, because he has such charisma that people joined him, and he has answered more than 70 questions during this session. And we got a lot of concerns addressed during this session. And thank you, our President Vinod Mahajan ji, to allow us to conduct this type of wonderful session. Income Tax Practitioner Association is really thankful to Sanjay Agarwal ji. We have great audience and we have brought great knowledge through this session. And I thank all the participants also. Pardon? We are regularly getting the updates that this was a very good session, sir. Very much interactive session, sir. I'll request. 2 घंटे पता नहीं लगा, Words, 2 sir. घंटे बीत गए हैं, 2 घंटे का पता नहीं लगा भी 6 बजे स्टार्ट हुआ, कितने बजे 5 बजे स्टार्ट हुआ है और 7 बज रहे हैं। मनीष शर्मा जी हैंड रेज करे हुए, अभी भी क्या बात है, इनको पूछो। मनीष शर्मा जी, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए सर। 5 minutes to go. हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मनीष जी। सर, संजय सर की तारीफ करना मतलब सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। वो 2 घंटे क्या सर, 20 घंटे भी बोलते रहे तो भी हम बिना थके उनको सुनते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही प्यार बरसाते रहे सर। रमन शर्मा जी, छोटी सी क्वेरी थी मेरी, बहुत छोटी सी सर, 1 सेकंड लूंगा बस। जो हम अपना 5% वाली लिमिट देखते हैं, उसमें एक्सचेकर की कोई पेमेंट होती है, वो भी हम कंसीडर करते हैं क्या? या लैंड बिल्डिंग भी हमने अगर सेल किया, उसकी कोई रिसीप्ट है, वो भी हम यस सर, ऑल पेमेंट्स। एक्चुअली सर वो 5% गवर्नमेंट पेमेंट्स के लिए ही छोड़ा हुआ है गवर्नमेंट ने, अदरवाइज दे कुड मेक इट टू 100 आल्सो। सर अब आप जो है ना, बिजली का बिल भी 5000 से ऊपर नहीं दे सकते कैश में। वो कहता है जी आप जो भी करो अकाउंट पे ही चेक दो, मुझे नहीं पता। चलिए। Okay, Sanjay ji, this time we missed you having physically presence in Amritsar. Next time we will wish that you meet with us on a professional platform physically in Amritsar, both on CA platform and both on Income Tax Practitioner Association platform. Thank you very much. Thank you all. Thank you so much, sir. Control room, please conclude the proceedings. Please.